The last day of 5M transformation, right? For this batch. Nice. Okay, लोग आ ही रहे हैं अभी. Okay, चलो, no problem. We'll give them some time. Okay, wonderful, wonderful. Let people enter. We have 2 more minutes. Okay, wonderful. Thank you so much for joining. थोड़े I think people are still joining, so no problem. So कर लिया अच्छे से 5M के नहीं किया है? किसने अच्छे से किया है? हाथ खड़ा करें जरा. Without any break. Okay, wonderful. Rashi, that's really nice. No break, Rashi, not at all? Rashi Saxena ji? No, sir. No break at all? No break. No break. Wonderful. Very, Just very nice. For the first week, for 27th March, I have taken 1 day. After that, I have not taken any break. Super. Very, very nice. Wonderful. Very nice. Monica ji? Monica Verma. No break for you as well? बताइए. No, sir, कोई break नहीं दिया. क्या बात है. Very nice. That's incredible. Wonderful. Very, very good. Okay, Samadhan, right? Thank you, Monica ji. Yes, sir. Could you also continue without a break? Yes, sir. 14 days I'm following 5M transformation. 14 days following. Jai Shri, Abhi, thank you, Samadhan. Wonderful. हाँ सर, एक दिन का ब्रेक था. मेरा तबीयत खराब था, बस उस दिन ही. Okay, wonderful. नहीं तो 13 days completed. That's really nice. Pooja ji, thank you. 2 days missed. Same. Sorry, 2 days missed. Yeah. Okay, कोई नहीं. 2 days missed. Wonderful. Who else? और कौन है? Priyanka Solanki ji. Yes. Unmute. अब की आवाज नहीं आ रही है. अनम्यूट कीजिए खुद को. हेलो. हाँ जी, अब बोलिए. मैंने भी वो कर ही रही हूँ 5M ट्रांसफॉर्मेशन. मैंने योगा क्लास ज्वाइन कर लिया है. ओके, नहीं आपने वो तो ठीक है. आपने रेगुलर किया है विदाउट एनी ब्रेक? यस सर. एवरीडे 5 AM? यस सर. सच बोल रही हैं? यस सर. पक्का वाला सच? हाँ, मेरा क्लास ही 6 बजे का होता है, तो मेरे उठना ही पड़ता है ना योगा. अच्छा, आपने 6 बजे का क्लास रख लिया ताकि आपको 5 बजे उठना ही पड़े, तो चॉइस ही ना बचे. तो 5 बजे उठ के फिर वो करना पड़ेगा ना. अच्छी बात है. वंडरफुल, वंडरफुल. हाँ जी, दर्शना जी आपने भी किया है विदाउट. थैंक यू प्रियंका जी. दर्शना जी आपने भी? Yes, sir. Without a break. One day I have missed it. One day you missed it. One day I have missed it. Okay. Okay, who else is there? किसने बिल्कुल भी मिस नहीं किया? Rashi, you did not miss even a single day. Juhi ji, आपने भी? You also did not miss even a single day. Wonderful. Okay. Rashi ji, how was your experience? Tell me. So the past 14 experience days. was, I have joined on 27th March. Today I have completed 67th day. Okay, I still wonderful. want to continue. So I have taken for 1 day break. My health is improved a lot. I am having hormonal imbalance. So जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे. तो मैंने आपको जब ग्रेटिट्यूड दी थी तब से बहुत इम्प्रूवमेंट है मुझे, और अभी तो मेरी लाइफ का पार्ट हो गया. बिना अलार्म के मैं 4:30 उठ जाती हूँ. और लगता है रेस्ट ऑफ द लाइफ I need to follow 5AM transformation. Thank you so much. How nice. Thank you. Wonderful. Samadhan, tell me. Good afternoon, sir. This is रुकिए, Mamina here. रुकिए. आपका नाम समाधान तो नहीं है ना? नहीं सर. रुकिए, मामीना जी. इतनी जल्दबाजी नहीं मचाएंगे, थोड़ा सा ठहराव रखते हैं. हाँ जी, बोलिए. समाधान. Sir, it's since 14 days I'm following. Wonderful. Light and disciplined. So I was trying since 2-3 years to do this, but it was not disciplined. 10 days, 5 days I used to do, but it was not continued. So, but this, your words and all thoughts are keeping me to do these things and feeling light and like empowered from inner side. So that is okay. Wonderful. Yeah. Wonderful. Thank you. Pooja ji, Pooja SM. Yes. पूरा डे फुल डे मतलब फ्रेशनेस होता है, और वन मोर थिंग इज कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है हम लोग. मतलब डेली लेजीनेस ही सब कुछ नहीं होता, मतलब एक्टिव होते हैं हम लोग. लेकिन 15 डेज से मैं स्टार्ट हूँ, बस यही मैं कर रही हूँ.
Okay, wonderful. Monica ji? यार मतलब सुबह 5 बजे तो उठने का तो हमेशा ही रहता था। बाकी जो क्रिएटिविटी थी वो बहुत उससे बहुत ब्यूटीफुल मतलब एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिला। क्रिएटिविटी जागृत हो गई है। हाँ जी। ओके, वंडरफुल। जूही जी? जूही हिरानी जी? Yes, sir. हाँ Sir, जी, बोलिए। sir, मेरा तो it's like a part of my life now. मैं anyways 4:35 के बीच में उठ ही जाती हूँ. Wonderful. Since the day I joined, so it's like very nice, or it's like it has become a habit now. Even on Sundays मैं automatically जल्दी उठ जाती हूँ. Very nice, wonderful, very It has good. been a very big transformation in my life, and I'm really enjoying, and I'm so thankful to you for this. Thank you so much. Thank you. Darshana ji? Yes, sir. Earlier, the one change which I felt in myself is that earlier I did not get time for me. Okay. I used to do household chores. I used to run for my school and everything. Now this 5 a.m. has given me time to spend with myself. Wonderful. Time with yourself. 40 minutes. 40 minutes I can easily spend time with me. That is only me time. No one around in the house. Everyone is sleeping. I'm the only one who is awake. No one disturbing you at all. Yeah. I'm the only one, and it's me only. It's my time. It is क्या how लगता I है introspect. ये समय क्यों जरूरी है? किसी ने कभी कॉन्टेम्पलेट किया अपनी लाइफ के अंदर कि ये मी टाइम क्यों चाहिए होता है? या अभी भी लोगों को लगता है मी टाइम नहीं होना चाहिए क्योंकि हम बहुत सेल्फिश महसूस करते हैं? अदरवाइज ऐसा कुछ भी है, कुछ इस प्रकार की गिल्ट फील भी है तो बता दो। ये मी टाइम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जीवन के अंदर? सोचिए। Absolutely होना चाहिए सर। क्योंकि जब प्लेन में ट्रैवल करते हैं ना तो पहले कहते हैं कि अपनी ऑक्सीजन मास्क लगाओ, खुद को बचाओ। अगर खुद को बचा पाओगे तो दूसरों की मदद कर पाओगे। जब तक खुद हम पक्के नहीं हो जाते तब तक हम दूसरे की क्या मदद कर पाएंगे, दूसरे के लिए क्या कर पाएंगे? फिर वो हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे हस्बैंड भी हो सकते हैं, हमारे घर के सदस्य भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होता है ना। एक स्ट्रॉन्ग इंसान एक दूसरे की मदद कर सकता है। तो जब आप मी टाइम के जरिए खुद को जान पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, खुद को सुलझा लेते हैं तो आसान हो जाता है इस जीवन को सुलझाना और दूसरों को सुलझाना। Absolutely correct. Just give me 1 second, everyone. Then we come to everyone again. Yes. So, जब हम खुद को सुलझा लेते हैं तो फिर आसान हो जाता है जीवन को सुलझाना और बाकी सबको सुलझाना। Wonderful, very nice. Okay. 1 second. तो शुरू करें क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, Q&A सेशन। ओके, वंडरफुल। पिछली बार भी काफी सारे क्वेश्चंस थे बट लास्ट टाइम हमने ओवरथिंकिंग का सेशन किया था। इस बार कोई नहीं, कोई भी सवाल आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। कोशिश करते हैं उसका जवाब देने की, कोशिश करते हैं कि अगर कोई उलझन है तो उसको सुलझाने की। और वैसे ही है तो whoever has any questions can please raise your hands, so one by one we'll come। तो मैं कोशिश करूंगा उसको थोड़ा शॉर्ट रख के, प्रिसाइज रख के, ताकि काफी सारे लोगों के सवालों के जवाब दिए जाए। सवाल है कि नहीं है? अगर नहीं है तो कुछ और कर सकते हैं। किस किस के सवाल है? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 हाँ, होल्ड ऑन 1 second 5 1 second, people are entering 6 7 okay। चलो कोशिश करते हैं, one by one let's try to do this। okay, हाँ जी, कनिका जी क्या सवाल है आपका, बताइए। So, Himanshu, I had started watching your videos from 3-4 days onwards. Actually, I am an overthinker, and I used to think a lot, and I have a lot of things going on in my mind. So, कल आपने एक वीडियो अपने बीच पे कवर किया था कि अगर कोई आप किसी से हर्ट हैं या कोई आपसे हर्ट है तो आप उनसे बात कर लो। Now my question is, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामने वाला हमको बिना कुछ बताए हुए ही ब्लॉक कर देता है। I mean, कुछ आर्गुमेंट हुआ, सामने वाले ने हमको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक तो उस केस में हमारा ईगो आ जाता है ना, तो उसको कैसे साइड में?
कुछ नहीं होता, ईगो का ब्रूज होना जरूरी है जीवन के अंदर। जब तक ईगो टूटेगी नहीं तब तक आप खुद से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। 100% आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से हियर। हम सामने वाले को फोन करें, सामने वाले से बात करें और सामने वाला हमारा इंसल्ट कर दे तो फिर वो हमको और बुरा लगेगा। तो कैसा होता है लगेगा। विद टाइम हम आगे बढ़ने लगते हैं, हम भी अपने आप को स्ट्रांग बनाने लगते हैं, ऑल दो चीजें होती हैं। पर जब अभी जैसे फॉर एग्जांपल 1 महीना किसी से बात नहीं किया एंड देन आई रियलाइज कि चलो बात करते हैं एंड बातों को क्लोज करते हैं, या मे बी शायद न्यू स्टार्ट हो जाए किसी चीज की, एंड 1 महीने के बाद फिर उसने बुरा लगा तो उस जिस चीज को हमने रिकवर किया है उस चीज को वापस रिकवर करने के लिए और 1 महीना चला जाएगा। तो क्या दोबारा करें? बोलिए, 1 महीने के बाद क्या कह रहे हैं आप? मतलब 1 महीने तक बात नहीं हुई, आप जीवन में आगे बढ़ने की आपने कोशिश की, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, जैसे अभी कैसा हुआ, शुरू में जब हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ, आई डोंट नो क्यों हुआ, एंड देन फिर हम डिटेल्स में नहीं जाते हैं बिकॉज़ इट विल बी अपलोडेड ऑन द सेशन एज वेल। द सेशन विल बी अपलोडेड ऑन YouTube। हम सिर्फ समझ लेते हैं ऊपर की बात को। इनिशियली आई ट्राइड रिजॉल्विंग द मैटर, देन 1 मंथ बाकी सब प्लीज म्यूट, वन सेकंड, एवरीवन प्लीज म्यूट, लेट अस स्पीक। सॉरी, बोलिए कनिका जी। या तो इनिशियली आई ट्राइड रिजॉल्विंग द मैटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ 1 महीने तक मतलब कुछ अभी इट्स बीन 1 मंथ कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने इनिशियली ट्राई कर लिया है तो फिर क्यों किसी चीज के लिए ट्राई करना। तो कंफ्यूजन किस बात की है? कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है या पीछे जाना है? आपने बोला है कि अगर आपके मन में कुछ है तो उसको रिजॉल्व कर दो। तो मैं उस क्वेश्चन रुकिए हम ना देखिए, समझिए जरा बात को। हाँ। जो भी वीडियोस बनते हैं, जो भी थॉट्स होते हैं ना, हम हर चीज को लिटरली नहीं ले सकते। लिटरली का मतलब होता है जब मैं कोई थॉट देता हूँ, जब कोई थॉट आता है ये उन लोगों के लिए है जो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिनके अपने बहुत सारे कम्युनिकेशन में गैप्स हैं। तो उनके लिए कहा जाता है कि हाउ डू एक्सप्लेन इट। हम ना एक चीज को पकड़ लेते हैं, लेकिन जीवन एक चीज नहीं होती ना। आप समझे मेरी बात? अब ये जो भी वीडियोस बनते हैं वो जाहिर सी बात है स्पेसिफिकली नहीं बनते, जनरली बनते हैं ताकि यूनिवर्सली पीपल कैन कनेक्ट टू इट। तो ये उन लोगों के लिए हैं जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जिनके आपस में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो चीजें खराब हो रही हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं जो ब्लॉक एक दूसरे को कर चुके हैं। आप समझे मेरी बात? लिटरली अगर हम बात करें तो आपके केस में जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक्चुअली ऐसा है, मुझे लगता है कंफ्यूजन इस प्रकार की है। देखिए, अगर एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया गया है, एक दूसरे से ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक इंसान आपसे ताल्लुक नहीं रखना चाहता है तो आप कुछ भी करके उससे ताल्लुक नहीं रख पाएंगे। आई एम श्योर इस 1 महीने में आपने काफी कोशिशें की होंगी अलग अलग प्लेटफॉर्म से ट्राई करने के लिए, किसी दोस्तों के थ्रू या उन्होंने कुछ ट्राई किया होगा, जो भी XYZ, वो बड़ा पर्सनल सी चीज है। खुद के नंबर से मुझे लगा कि सामने वाला अगर मेरे ही नंबर से नहीं बात कर रहा है तो मैं किसी और नंबर से बात करके क्या इशू रिजॉल्व करूं? दैट्स एब्सोल्युटली ओके। मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं ना, अगर एक नंबर ब्लॉक हो जाता है तो दूसरे से ट्राई करते हैं, या दोस्तों से ट्राई करते हैं, या दोस्तों को बीच में लाते हैं, या सोशल मीडिया से टॉक करने की कोशिश करते हैं कि दे आल्सो, बिकॉज़ क्या होता है ना, वी वांट क्लोजर। वो क्लोजर नहीं मिलता है। तो समझ में नहीं आता कि अचानक से उस इंसान को इतना सब कुछ अच्छा था, अचानक से उसने ब्लॉक क्यों कर दिया मुझे। और ना मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ, जब कोई आपको ब्लॉक करता है तो आपकी ईगो की धज्जियां उड़ जाती है। यू गेट ब्रूज टू अनदर एक्सटेंट। आपको लगता है यार आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आपकी सेल्फ वर्थ की धज्जियां उड़ जाती है। आपको समझ में नहीं आता है, द ईगो स्टार्ट्स बिकमिंग हर्ट। उसमें आई वोंट से the ego also wants to hurt them in some form or the other। जब तक वो hurt नहीं करेगी ना उसको चैन नहीं मिलता है। अब ये अफिया तो होता कि हम भी उनको ब्लॉक कर दें। करेक्ट। तो अब उसमें सिर्फ टेम्परेरी सुकून है और कोई बात नहीं, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। बस अब बात मुद्दे के यहाँ पर आती है, जो मेन है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, वो आपसे रिश्ता शायद नहीं रखना चाहते। अब बात यहाँ पर आती है, ईगो को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं कि एक्चुअली हम क्या चाह रहे हैं। क्या वाकई में चीजें सटीक सही स्तर से देखें तो क्या चीजें सही हैं, वो सही हो सकती हैं, होना चाहती हैं दोनों की मर्जी से। और अगर नहीं है तो क्या ये सही नहीं। हम ईगो को साइड में रख के हम शायद अब क्या होगा ना, ईगो को अगर रखेंगे तो सिर्फ हर्ट खेलेंगे एक दूसरे के साथ। तो हर्ट खेलने से तो बेहतर है कि, और उस हर्ट में क्या होगा, वो हर्ट 15 अभी आपने ब्लॉक कर दिया, 2 दिन के बाद फिर उनकी याद आएगी, फिर दिमाग वहीं पे गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा। तो अब डिसाइड ये करना है कि डू वी वांट टू स्टेप अहेड इन लाइफ और डू वी नॉट वांट टू स्टेप अहेड इन लाइफ। राइट, ये डिसीजन लेना जरूरी है। ये बहुत स्थिर दिमाग से लेना जरूरी है, इंस्टेड ऑफ एनी ईगो इन दिस, इंस्टेड ऑफ एनी हर्ट इन दिस। इफ यू कैन टेक दिस डिसीजन,
तो मुझे लगता है ये बेटर हो जाएगा, क्यों आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने फैसला ले लिया, आपके ने 1 महीने से कोई कम्युनिकेशन नहीं, आपको लग रहा है कि शायद इस रिश्ते का यही अंत ज़ाहिर था या होना था। हम आगे बढ़ सकते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तो आप आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है ना कि वही इंसान सबसे ज़्यादा बेहतर है और उसी के साथ आप जीवन बिताना चाहती हैं, लेकिन अगर उसने आपको ब्लॉक कर दिया, तो शायद अगर अलग-अलग तरीके से कोशिश कर सकते हैं कि वो बात भी करना चाह रहे हैं कि नहीं। अगर वो इस केस में भी अगर नहीं करना चाहते आपसे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं, तो शायद हो सकता है कि टेम्परेरी गुस्सा हो, उस गुस्से को हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं। आपस में एक-दूसरे से बैठ के बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेट करके उसको सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते, तो देन इट इज़ अ डेड एंड, बिकॉज़ एक रिलेशनशिप 2 लोगों की सहमति से चलता है अलग-अलग नहीं। Yes. दिस इज़ द सॉल्यूशन Also, फॉर दिस। Himanshu, see, I work in a corporate, ओके, and the problem with me is I am not. I speak, my heart is good and everything is there, but I don't speak politically. मतलब एक होता है ना बट कि कौन कह रहा है हम पॉलिटिकली यहाँ पे बोलने के लिए? आप कहीं पे भी काम no, करती हो, हाँ मैं नहीं फ़िल्म अभी इंडस्ट्री में कैसा होता काम है ना करता हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ बोलिए आप when you're बोलिए, working in कंप्लीट a कर लीजिए। corporate, हाँ, हुँ, when you're working in a corporate, आपको वो सक्सेस लेडर चढ़ने के लिए ना बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होना हुँ, पड़ता है एंड हुँ, ऑल दोस थिंग्स। बट हुँ, मेरा ऐसा है कि आई एम लाइक कि यार मैं अपना काम करूंगी, मैं अपना हुँ, दिल साफ रखूंगी एंड देन हुँ, आई विल ग्रो। तो हुँ, वैसे नहीं चलता, दैट्स व्हाट आई फील। एंड लोग जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ना, दे कैन जस्ट हुँ, काम मैन, वो लोग मेरे को हुँ। बेवकूफ बना के चल देते हैं। तो हाउ टू डील इन सच सिचुएशन, बिकॉज मेरे को पॉलिटिकल गेम्स खेलना नहीं आता। आई एम वेरी आप ओपन कह द रहे हैं थिंग आई एम कि टॉकिंग। आपके आपके कोर को, आपके बीइंग को जो ट्रूएस्ट फॉर्म है, उसको पॉलिटिकली चीज़ें समझ में नहीं आती, वो मैनिपुलेट नहीं करना चाहता, वो हिपोक्रेसी में नहीं जाना चाहता, एंड यू आर एब्सोल्युटली ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड अदर्स, राइट? Yes, and then हुँ, I fail हाउ डू यू फील? because then व्हाट what इज़ द happens? परिभाषा रुकिए। व्हाट इज़ द परिभाषा ऑफ सक्सेस एंड फेलियर? क्या हम सक्सेस Okay, और फेलियर की सिर्फ so एक ही परिभाषा लेके एक सेकंड, एक रुक जाइए, रुक जाइए। okay, okay. शांत, शांत, शांत। हमने ना क्या है, सक्सेस और फेलियर की एक ही परिभाषा बना रखी है। Hmm. क्या परिभाषा है, कोई भी बता देगा यहाँ पर, बड़ा सिंपल है। जब आप कॉर्पोरेट लैडर की बात करें, तो उसमें वही हो जाता है कि ऊँचा डेज़िग्नेशन, करेक्ट? हाँ, एक yes, ऊँचा डेज़िग्नेशन का मतलब उसके पास गाड़ी है, घर है, सेटल्ड है, अच्छा पे पैकेज है, सब चीज़ें हैं। yes. क्या उनका जीवन सही है कि नहीं, ये आपको पता है कि नहीं पता? ये कैसे पता चलेगा? या सिर्फ जो हम देख रहे हैं उसी को सक्सेस महसूस कर रहे हैं और समझ रहे हैं? See, हिमांशु, आई अंडरस्टैंड कि हर किसी की अपनी एक स्टोरी होती है अपने लाइफ करेक्ट है, में। मेरे लाइफ में करेक्ट है, भी एक प्रॉब्लम है, तो यू आर करेक्ट है, वर्किंग इन इंडस्ट्री, यू आर सक्सेसफुल, यू आल्सो करेक्ट, हैव अ प्रॉब्लम। करेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस विथ मी इज, अभी हुँ, मेरे सामने ना मेरे को हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइक मेरी कलीग है, उसको मेरे सामने अप्रेजल दे दिया गया और मुझे बोला गया कि यू प्रूव योरसेल्फ मोर, बिकॉज आई एम हुँ, ऑनेस्ट, आई एम सीधा, हुँ, यू हुँ, कैन ओपनली जस्ट, मैं क्योंकि आप बोलोगे हाँ ठीक है तो ओके ठीक है चलेगा कोई बात हुँ, नहीं, दैट हुँ, बट वो चीजें मैं रिएक्ट नहीं करती, बट हुँ। दैट हर्ट। तो सॉरी, अच्छा आप रिएक्ट नहीं करते बट दैट हर्ट्स यू। आई मीन हुँ, इफ यू से ना कनिका यू हैव टू डू दिस, तो आई विल बी लाइक ओके आई विल डू दिस, हुँ। आई व्हाट इज़ नॉट द रिएक्ट। डिफरेंस बिटवीन योर कलीग एंड यू, जिसको अप्रेज़ल मिला? आपको क्या लगता है उनकी तरफ क्या डिफरेंस Okay, और so आपको क्या he has डिफरेंस done था? five. He has done 5 recruitments in हुँ, 1 year. I have done 5 recruitments. Plus, I'm handling the entire HR operations. Plus, I'm handling the administrative role in my organization. So I'm doing much more than her. Just the thing हुँ। is, I have never said no, or I've never been arrogant, or I've never been suppressive. So इस चीज के लिए मुझे दबा दिया जाता है. So how to handle such situation? आप कह रहे हैं कि वो एरोगेंट हैं और वो सप्रेस नहीं करती हैं, इसलिए उनको अप्रेज़ल मिला। नहीं, उनके केस में कैसा है ना, उनके केस में अगर बॉस ने उल्टा बोल दिया तो शी विल बी लाइक हुँ, डोंट यू डेयर ट्राई टू टॉक टू मी लाइक दिस, आई विल नॉट टॉलरेट दिस थिंग्स। मेरे केस हुँ। में कैसा है, मेरे को बॉस ये ने तो कुछ बोल बड़ी आप उल्टी बात कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि अगर बॉस के आगे कोई कुछ बोलता है तो उसको अप्रेज़ल नहीं मिलता। जो बॉस के आगे चुप रहता है उसको अप्रेज़ल मिलता है। आप तो उल्टी बात कह रही नहीं, बस वही है ना, हैं। मैं वही समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे ये बोला जाता है कि देयर इज लैक ऑफ सुनिए, मैच्योरिटी इन यू। हाँ, सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाज़ी बहुत है, ठीक हाँ, है? हो सकता हाँ, है ठहराव की कमी है। अगर आप हाँ, जैसे कहती हैं कि आपको कहते हैं कि मैच्योरिटी कम है, तो हम्म, शायद इसका मतलब ये है कि ठहराव की कमी है, जल्दबाज़ी बहुत है, बहुत जल्दी रिएक्टिव हैं शायद आप, ऐसा कुछ है? और शायद, इस शायद इसी वजह से थोड़ा-सा गुस्सा भी होगा, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड भी होगा, थोड़ा कंट्रोल फ्रीक भी होगे। तो हम्म, मैं असम्पशन्स लगा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूँ, जो आप कह हाँ, रही हैं। हम्म, तो ये एक्चुअली पता है क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों पे ना खुद पे काम करना पड़ता है। मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा ध्यान दूसरों पे भी देते हैं, मे बी, क्योंकि यस, हमने पैरामीटर्स दूसरों के बना रखे हैं ना, हम दूसरों के नज़रिए से खुद को समझते हैं और जानते हैं।
हाँ दूसरे के पैरामीटर्स से हम कंपेयर करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली और उसी पैरामीटर्स में मटक के रह जाते हैं। तो शायद जैसे आपने कहा कि आप ऑनेस्ट हैं, आप ट्रू हैं, आप ही हैं, मुझे लगता है अपने अपने ट्रूएस्ट बीइंग को पहले जानना जरूरी होता है। हम कह तो देते हैं हम बहुत सारी चीजें, क्या वाकई में ये सब हैं भी कि नहीं है हम, या हम सिर्फ हर चीज जो मन में आई उसको बोल दिया और हमें लगता है यही यही ये स्पीकिंग माय हार्ट आउट है। नो, दैट्स नॉट स्पीकिंग योर हार्ट आउट। आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, उसका क्या तरीका है। बात तो मैं भी आपसे कर रहा हूँ, लेकिन आप भी मुझसे कर रहे हैं, लेकिन दोनों के तरीकों में फर्क हो सकता है ना। हाँ वो तरीका मायने रखता है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते लिसन आई एम ऑनेस्ट सो आई कैन बी ब्लंट। ऑनेस्टी और सच का सिर्फ एक ही ताल्लुक है। सच अगर हम बोलते हैं ना तो सच का ताल्लुक सिर्फ साहस से होता है, तथ्य से कोई ताल्लुक नहीं है। तथ्य मतलब फैक्ट। अगर आपको लगता है कि कोई फैक्ट है और मैंने फैक्ट एज इट इज बोल दिया तो दैट मीन्स आई हैव हेल्ड द ट्रूथ लैडर। नो, सच का मतलब साहस है। सच का मतलब है खुद को जानना, खुद को समझना और सही तरीके से हर चीज को जाहिर करना, समझाना भी और समझना। हम सिर्फ एक छोटी सी चीज को, क्योंकि हमारी सोसाइटल कंडीशनिंग में ऐसा आता है, इफ आई स्पीक माय हार्ट आउट दैट बेसिकली मींस आई एम ऑनेस्ट। नो नो, ये कैसे सही होगा बताओ। ये तो आपका, और जो आप हार्ट आउट की बात कर रहे हैं वो आपका पर्सपेक्टिव है जीवन का। अब जरूरी तो नहीं ना मैं आपके पर्सपेक्टिव से जीवन जीऊंगा, मैं अपने पर्सपेक्टिव से जीऊंगा। आप अपनी बात रख सकते हैं, मैं भी अपनी बात रख सकता हूँ, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे आपकी बात लेनी है कि नहीं लेनी है। लेकिन जब हम रख देते हैं अपनी बात तो हमें लगता है कि सामने वालों को भी वो बात लेनी चाहिए, क्योंकि हमने तो अपनी ऑनेस्टी से सारी बातें कर दी। तो हम सेइंग, मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय खुद को दीजिए पहले, क्योंकि शायद बहुत सारी चीजों का ना मिश्रण है अभी। मिश्रण इन द सेंस काफी सारी चीजें लेयर बाय लेयर कॉम्प्लिकेट होती चली जाती हैं। थोड़ा सा खुद को जानने का प्रयास करें, थोड़ा खुद के साथ टाइम बिताएं, थोड़ा सा स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली हु यू आर एंड व्हाट डू यू वांट। डू यू एक्चुअली वांट ऑल दोस थिंग्स और यू डोंट वांट, जिसके लिए आप एम कर रही हैं। कभी कभी क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी, हम दूसरों के देखा देखी उनकी तरफ भागते चले जाते हैं। करेक्ट, राइट। और फिर वो कहीं ना कहीं उसका लैक जो है ना, क्योंकि हमें अचीव नहीं हो रही, तो वो लैक हमें तंग करता रहता है कॉन्स्टेंटली, और फिर हम और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो सारी की सारी चीजें ना गोल गोल घूमती रहती हैं ऐसे पैटर्न की तरह। Spend some time with yourself. Take a break. Take a break from from all the things that is going around. Sometimes some breaks are essential. Maybe travel, maybe explore, maybe spend time with yourself. Maybe keep a silence fast. Maybe keep a normal fast. A lot of things needs to come in alignment. वो तब आते हैं जब हम थोड़ा सा रुक जाते हैं. It's like, for example, ये एक पटरी है जीवन की और ये एक और पटरी है। होता क्या most of the times हम इस पटरी पे चले जाते हैं ये सोच के कि बाकी सब इस पटरी पे जा रहे हैं तो यही जीवन की सही पटरी होगी। पता नहीं वो सही है कि नहीं है, क्योंकि हर कोई आंख बंद करके भाग रहा है। थोड़ा सा रुकना थमना जरूरी हो जाता है कि टू अंडरस्टैंड कि हम एक्चुअली सही ट्रेन में हैं कि नहीं है, सही पैसेंजर हैं कि नहीं है, या सही पटरी पर है कि नहीं है। पता लगा पटरी ये है जीवन की, जाना यहाँ था, लेकिन 20 साल यहाँ निकाल लिया, फिर जब 40 साल की 50 साल की उम्र हो जाती है तो ऐसा लगता है यार ये क्या कर दिया मैंने, तो लाइफ ही वेस्ट कर दिया। आई वांटेड टू डू दिस, दिस वाज माय कोर, दिस रेजोनेटेड विद मी, बट आई केप्ट गोइंग देयर बिकॉज मेरी चाची के मामा का ताए का लड़का वो कर रहा था, मेरा नेबर ये कर रहा था, मेरा भाई ये कर रहा था, मेरे कजन ये कर रहा था, आई केप्ट फॉलोइंग दैट पाथ। एंड एट the end of the day, even if you become the CEO of a company, hypothetically, even if you become the CEO or a managing director of a big company, you will still be a loser because you could not resonate with what you felt deeply inside you. Maybe आपका कोर कुछ और कर रहा था, truest being कुछ और कर रहा था, लेकिन हम चाह कहीं और रहे हैं, आंख पे पट्टी बांध कर। हमारी जिस तरह की मेंटालिटी ने, खासकर हमारे देश में बहुत ज्यादा, इसे 2 शब्दों में कहते हैं भेड़ चाल। Yes, Himanshu, I would like to tell you one more thing. So, I mean, this is a gratitude for you. So my sister always tells me, I mean, it's been a year, she's telling me ki, I mean, recently she lost her husband and she's constantly following your sayings and everything, and your sayings, your videos have helped her out to understand what life is, and she's the one who has brought me here to your page. So I just wanted to thank you, and the videos and everything what you are sharing is like very helpful. And I've just joined your page on Instagram yesterday evening, and I could also feel that how it is to follow your pages. Thank you. Please give my regards to her. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yes. Moving on. Thank you, Kanika. Moving on to Govind जी. हाँ जी गोविंद जी, क्या सवाल है आपका? हाय सर, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया।
सर सवाल अभी तो मेरे माइंड में काफी आगे, लेकिन एक सब क्योंकि 4-5 सवाल है, बस मेन एक सवाल मेरा जो ये है। फिलहाल तो बाकी सबको मौका देंगे, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है, मैं एक सवाल के साथ शुरू करता हूँ। सर बोलो। सवाल ये है कि आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें आपने बोला था कि इंटेंट मैटर करता है। इंटेंट मैटर करती है। So, धीरे मैंने आपकी और भी वीडियोस देखी थी, तो जब भी मैं ऑफिस या कहीं जाता हूँ तो मैं अपने आप को एक्चुअल सिचुएशन में देखना चाहता हूँ। कई बार होता क्या है, कोई सामने से रिस्पॉन्ड करता है या कुछ बोलता है तो ईगो बीच में आ जाता है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि ईगो बीच में ना आए, बट 95 या 80% टाइम ऐसा होता है कि ईगो बीच में आ जाता है और फिर ईगो के अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले लेता हूँ। लेकिन फिर मैं एंड ऑफ द डे जब घर आता हूँ तो अपना पूरा डे देखता हूँ कि हाँ मैंने कैसे रिस्पॉन्स किया या मैं कुछ और बेहतर तरीके से उसको रिस्पॉन्स कर सकता था। तो तब मुझे वहाँ पर क्लैरिटी मिलती है कि हाँ मैं इसको और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता था या इस बात को और पोलाइटली में बोल सकता था। जब प्रैक्टिकली उसको अगले दिन फिर जाते हैं तो हाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही। सो इसको आई कैसे वो अंडरस्टैंड। करें? देखिए एक्चुअली ना गोविंद जी बात सही है, और ये ईगो ना हमारा सेंटर है। यहाँ का सेंटर जो है ना हमारे बीइंग का तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का, हमारा सेंटर ही ईगो है। क्योंकि सर्वाइवल तो हमारा है, मतलब सर्वाइवल तो हो ही जाता है। सर्वाइवल के बाद भी हमें जो सारी चीजों के लिए ड्रिवन होते हैं ना हम लोग, वो ईगो ही करती है। दैट इज मी सेंट्रिक थॉट्स, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वहां जाना है, मुझे इसको डिफीट करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अचीवमेंट करनी है। ईगो ही तो है एट द एंड ऑफ द डे। वरना घर के बाद या आपके पास कपड़ों के बाद या खाने के बाद आपके अंदर ड्राइव ही नहीं रह जाएगी। तो वो ड्राइव हमारे अंदर डाली गई सो दैट दिस यूनिवर्स कैन एक्सप्लोड, दिस यूनिवर्स कैन एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोड इन द सेंस वो बढ़ेगा ही ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, नई नई चीजें बढ़ती हैं। आज सामने पुल है, सामने बिल्डिंगें खड़ी हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं था ना, फ्लैट के ऊपर फ्लैट के ऊपर फ्लैट के ऊपर फ्लैट। तो किसी ने सोचा, क्योंकि एक ड्रिवन है, वो ईगो का एक बेसिक कोर है। क्या होता है ना, जब तक ये कोर स्थिर है और कंट्रोल में है और डाइल्यूटेड है तब तक ठीक है। जैसे ये जब जागना शुरू होता है तो इसी से सब ग्रीड आती है, इसी से लस्ट आता है, इसी से एटीट्यूड आता है, इसी से एरोगेंस आती है, इसी से गुस्सा आता है, इसी से फॉल्स प्रिटेंस आता है, इसी से हिपोक्रेसी आती है, इसी से मैनिपुलेशन आती है, इसी से सब चीजें आती है। और इसी के अंदर फियर भी है, क्योंकि ईगो का सबसे बड़ा फियर है खुद का डिसॉल्व होना। उसे डर लगता है कि मैं डिसॉल्व ना हो जाऊं, करेक्ट? तो वो डिसॉल्व नहीं होने देती, पकड़ के रखती है किसी ना किसी चीज को। तो कहीं ना कहीं रिएक्टिव पैटर्न्स रहते हैं। दो चीजें अच्छी हैं। सबसे पहली बात कि आपको ना ये समझ में तो आ रहा है कि एटलीस्ट जब भी कोई रिएक्टिव पैटर्न हो रहा है तो उस मोमेंट पे नहीं, लेकिन बाद में जब आप सेल्फ कॉन्टेम्पलेट करते हो तो आपको लगता है हाँ शायद मैंने गलत कर दिया। तो ये अवेयरनेस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ईगो को डिसॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अवेयरनेस है और कुछ नहीं। कि मतलब अगर मैं बैठा हूँ और ख्यालों और ख्वाबों में हूँ और मुझे 5 मिनट के बाद एहसास होता है कि नो कम बैक, दिस इज जस्ट कल्पना, दिस इज जस्ट ड्रीम, दिस इज जस्ट इमेजिनेशन, दैट बेसिकली मींस आई हैव कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, राइट? तो ये अवेयरनेस अपने आप में आपको बार बार प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। ऐसे ही अवेयरनेस आपको कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैंने रिएक्ट कर दिया, तो ये अवेयरनेस ही धीरे धीरे इसको डिसॉल्व करनी शुरू कर देगी। तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। बट द ओनली थिंग इज कीप अ चेक। आई थिंक एक वीडियो आने वाला है, आ गया है, कीप अ चेक ऑन द ईगो। उसका मतलब ही यही है कि कीप एन अवेयरनेस, मतलब यहाँ पे ना 24/7 अवेयरनेस जागृत रहनी चाहिए, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो हमेशा खुद को साक्षी भाव से देखती रहती कि यार मैं एक्चुअली कुछ और बोल सकता था, लेकिन जैसे ही सामने वाले ने कुछ ट्रिगर किया, मेरे दिमाग मेरे जहन में कुछ आया नहीं, मैंने फट से रिएक्ट कर दिया, मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे भी बुरा लग रहा है और उसको भी बुरा लग रहा है। तो शायद मैं सेल्फ कॉन्टेम्पलेट करके चीजें ठीक कर सकता था। तो अगली बार अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा और स्थिर रखने के लिए। ये हमेशा केस ना अगली बार का होता है कि जैसे आपको समझ में आती है, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि जब आपको समझ में आ जाए जिस लम्हे पे, उस लम्हे पे ये तय कर लेना कि अगली बार ऐसा कुछ होगा तो ये सेम नहीं हो सकता। आई कांट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। अगर पिछली बार किसी ने रिएक्ट किया और चाबी लगाई और मैंने कुछ बोल दिया, तो अगली बार अगर उसने वही चाबी लगाई या कुछ अलग तरीके से चाबी लगाई तो मैंने फिर वही कर दिया, तो मैं लूप में चल रहा हूँ। तो अगली बार मैं कोई और गलती कर सकता हूँ, कुछ और कर सकता हूँ, लेकिन लेट्स नॉट गेट इनटू द सेम सर्कल एंड द सेम लूप। दिस इज फॉर एवरीवन। द मोमेंट वी गेट इनटू अ लूप, फिर हम वो ट्रेडमिल पे जैसे भागते हैं ना, गोल 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 गोल, हमें लगता है हम भाग तो रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। ऐसे लाइफ के पैटर्न्स में हम अटक जाते हैं। सो डोंट गेट स्टक इन द पैटर्न्स। एंड ईगो ही है जो पैटर्न्स क्रिएट करती है, क्योंकि ईगो हर बार रिएक्ट करती है।
So you have to just watch yourself. That's it. Nothing more than that. खुद को देखते जाओ, साक्षी भाव से कहते हैं हम लोग हिंदी में, कि खुद को ना जैसे आपने शाम को आके खुद को देखा, चाहे किताब में लिखा, चाहे कॉपी में लिखा कि यार ये गलती हो गई, या खुद को समझा, महसूस किया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगली बार कुछ ऐसा होगा तो मैं थोड़ा-सा और ज़्यादा केयरफुल रहूँगा, धीरे-धीरे वो डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है यहाँ पर, मैंने देख लिया उनको। Anku is here. Hi Anku, how are you doing? So nice to see you here. Hi, very well. How are you? Wonderful. I'm so glad to see you. No, the minute I got the link yesterday, I said, no, I have to do this. Achha, I had no clue about that. Oh, how sweet is that? मुझे नहीं पता था. Hello, how are you? See, I have one more person to say hi to. Hi Anjali ji. कैसी हैं आप? So nice to see you. How are you? Good. Wonderful, wonderful. Listening to you, it's not just me, it's all three of us together. And we're listening to you. How nice, how nice. But I'm so happy to see you here. मतलब ये तो बड़ा surprise है मेरे लिए. Same here. I'm so happy. Likewise. Thank you. Thank when you. I was listening to, the first person who was asking about success, and the only person I went back to was Akshu. You counseling her through and through. She was one person who had no confidence in herself, and today where she's standing, it's like she herself doesn't believe it. I mean, when you were telling her, it is like you were preaching the same thing to Akshu, that you have to believe in yourself, you have to be slow, you have to be calm, you have to be patient. And it's the same Akshu who cracked the best university in the US. Then, in fact, one thing that I had to share with you is that. Can you hear me? Anku, are you here? New York bar exam, and she was one of them. And she got her result, told me, and she was like, I don't believe I have to check my result again and again and again. Wow. So, wow. That's please give my regards and congratulations to her. Yes, and to all of this, you hold a very, very big, you're a very big chunk of this whole story, and you know that. And thank you. My only reason to share this was for the first person who you were counseling, that being steady, being slow will take you a longer way than the other one, Yeah, it's important. थोड़ा ठहराव जी मुझे लगता है जरूरी हो जाता है. Yes, I have seen somebody who, listened to you and evolved, as mom says, has evolved and actually seen the world with a very different eye by just believing in आपके साथ जो बैठी हैं वो बहुत evolved हैं, आपको पता है ना अंजलि जी, मतलब मेरी बहुत सारी learnings जीवन की उनके साथ हुई है. That's so kind words, from your 100%. You have been. नहीं, ये तो कोई कहने वाली बात नहीं. मुझे तो याद है जब हम लोग टॉक शो कर रहे थे, तो आपने आई थिंक किड्स के बारे में कुछ कहा था, बीइंग अ पेरेंट, कि बड़ी खूबसूरत बात है, मुझे जीवन भर याद रहेगी कि जीवन में माँ बाप को ना माली बनना चाहिए, बच्चों का मालिक नहीं बनना चाहिए. True. बहुत बड़ी बात है. It is our responsibility, or God has made us parents to nurture our kids, but we cannot own them. They will have their own life, own destiny. Absolutely. And they grow to their own, calling on this earth. But in fact, yes, we have to, as parents, give them good values, at least, portray that. So we should leave it. Absolutely. In fact, I was reading a beautiful book. I have seen you, like here, probably I'm the eldest one in the chat show. I have seen you growing up. I have seen you evolving, and I have seen you how, in life you grew, and and changing lives. How you're changing lives now. Actually, you're touching life so beautifully. That's so nice. Thank you so much. Thank you. That's very kind of you. Thank you. In fact, parenting के ऊपर मैं सबसे कहना भी चाहूँगा, मुझे पता नहीं यहाँ पे कितने लोग पेरेंट्स हैं. एक बहुत कमाल की किताब मैं पढ़ रहा था. It's called The Conscious Parents by Dr. Shefali. अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ें. I think it is very, very beneficial, especially for whoever is parent. और इसमें बड़ी अच्छी बात है कि जो भी बच्चा पैदा होता है, उसकी सोल के अंदर उसका ब्लूप्रिंट होता है. The blueprint for life.
It's there inside the soul of the child. So let the child and the soul inside the child will decide where the child's path is going to be. It cannot be decided by parents. But unfortunately क्या होता है, जिस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं, most of the times it's the parents, you know, बहुत ज्यादा मुझे लगता है उनकी तरफ से, fortunately in my case I think my parents were very liberal, और उन्होंने कभी किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं की, किसी प्रकार का कुछ कहा नहीं, तो I think my soul could find what actually it looked for. But the kind of conventional society that we live in, where most of the times there's a lot of pressure by the family and by the relatives and by the cousins and by the friends कि यही करना है और यही आपके लिए बना है. I think it's very important for the child to find the blueprint which is hidden inside their soul, and also for parents to give that kind of a liberation so that the child can find something on its own. So पढ़िएगा, किताब बड़ी खूबसूरत है. It's called The Conscious Parents by Dr. Shefali. बहुत खूबसूरत है. It will really help. Okay, thank you. Moving on to next. Moving on to हाँ जी, आकांक्षा जी, कहाँ से? मथुरा, वृंदावन, भूल जाता हूँ, सॉरी. Finally, you remember. कहाँ से? मथुरा, वृंदावन. हाँ, मथुरा. राधे राधे. हाँ, राधे राधे. बोलिए. क्या सवाल है? I have complaints for you. You क्या didn't कंप्लेंट है respond. आपकी, बताइए. But I sent you birthday message, but you didn't respond. I'm sorry, मैं बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे नहीं रहता, मुझे खुद नहीं पता होता, क्योंकि अभी 15 दिन से मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ. I've not even checked, only the team is posting. So आप एक्चुअली उससे बेहतर होगा कि आप गोपी जी को भेज दें व्हाट्सएप पे, तो मैं वो ना मुझे फिर फॉरवर्ड कर देती हैं, क्योंकि DMs the team is not allowed to check and I usually don't. I'm off Instagram for a long time. मतलब मैं बहुत बीच में कम जाता हूँ, देख के निकल जाता हूँ. अभी तो पिछले 15 दिन से वो भी नहीं हुआ है. इंस्टाग्राम ऐप डिलीटेड है मेरे फोन में से. Cool. And I joined this meeting after a long time, and I changed your changing look change. Sorry, come again. You changed your look. हाँ, I'm playing a cop's role in one of the films, so yeah, this is for that. And yeah, my question is that nowadays I feel that people who I am surrounding them, they मतलब मेरे सामने तो एकदम हाँ तुम अच्छी हो ये हो, लेकिन एक तरीके से होता है ना कि हमें पता है कि वो हमारे अमीश हैं, they feel jealous, okay, but still I am giving my 100% to them. मीन्स मैं इग्नोर नहीं कर पाती उनको, ये जानते हुए भी कि हाँ मुझे इनको ज्यादा एफर्ट्स नहीं देने हैं, इनको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, इसलिए मैं उनको उतने ही एफर्ट्स के साथ में, उतनी ही कंसर्न के साथ में उनकी केयर करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ. माय क्वेश्चन इज दैट कि हाउ कैन आई इग्नोर देम? How can I ignore them? Yes. Why do you think you can't ignore them? I don't know. Actually, जब भी वो मेरे पास में आते हैं, कभी भी कुछ होता है कि आकांक्षा ये इस तरीके से करना, I always ready for them. मैं कभी भी उनको ना नहीं कह पाती हूँ. क्यों ना नहीं कह पाते हो? रुको लेयर बाय लेयर चलते हैं ना, मजा आएगा. क्यों ना नहीं कह पाते हो? I feel that they hurt. If I क्या लगता है, हर्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएंगे. तो क्या हो जाएगा फिर? बस एक और फ्रेंड कम हो जाएगा. हाँ तो फिर तो क्या होगा? उसके बाद क्या होगा फिर? रुको लेयर बाय लेयर चलते हैं, उसके बाद क्या होगा? अगर हो जाएगा तो फिर कोई नया मिल जाएगा. नहीं, शायद उससे पहले ये डर आएगा कि मैं अकेले रह जाऊंगी. हाँ. कोई मेरा साथ नहीं देगा, मैं किसी के साथ नहीं रह पाऊंगी. इसीलिए तो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. यही तो डर है. सबका होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का होगा कि सर इसको ये नहीं बोल सकते क्योंकि वो हर्ट हो जाएगा, उसे बुरा लग जाएगा, वो बुरा लग जाएगा तो मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं रह नहीं पाऊंगा. उसके साथ ही आपने एक लेयर में एक बड़ी अच्छी बात की कि कोई और नया आ जाएगा. क्या कोई और नया आता नहीं है जीवन में? अपना जीवन उठा के देख लो. जब एक दोस्त पीछा छोड़ के चला जाता है या छूट जाता है तो क्या दूसरा कोई नया इंसान जीवन में आता नहीं है क्या? आता है, हमेशा ही आएगा. दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. दिस इज हाउ द होल यूनिवर्स वर्क्स. One will leave, another will enter in some form or the other. Maybe the forms may differ, but somebody will leave and somebody will enter. ऐसे ही चलता है यूनिवर्स. ये आपके साथ नहीं, सबके साथ है. हो क्या रहा है? डर भी इतने सारे हैं. फिर एक्चुअली क्या होता है ना, क्योंकि हमारे डर इतने सारे हैं कि सामने वाला हर्ट ना हो, तो इसी वजह से तो टेकन फॉर ग्रांटेड है. इसी वजह से तो हम परेशान हो रहे हैं. इसी वजह से तो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं. करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और फिर हम परेशान भी हो रहे हैं.
तो जाने दो जिसको जाना है। तो अगर लगता है कि बहुत ज्यादा कर लिया है, बहुत ज्यादा डिवोट कर लिया है सामने वाला, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं कर रहा, उसकी कद्र नहीं कर रहा और इक्विवेलेंट रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, इस रिलेशनशिप में आप हमेशा नीचे हो, सामने वाला हमेशा अपना हाथ और पैर ऊपर रखता है, और इस इन इक्वालिटी के रिलेशनशिप में समवेयर डाउन द लाइन यू आर आल्सो नॉट हैप्पी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या आपका सेल्फ वर्थ या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिमिनिश होता है। इन इक्वालिटी के रिलेशन में डिमिनिश होता है कि नहीं होता? जब किसी और का हाथ ऊपर होता है और आप नीचे होते हैं, तो क्या आपकी सेल्फ वर्थ की धज्जियां उड़ती हैं कि नहीं उड़ती? आपको अपने बारे में बुरा लगता है कि नहीं लगता कि मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है? कोई आपके साथ ट्रीटमेंट कर नहीं रहा है, आप अपने साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट अलाउ कौन कर रहा है करने के लिए? सोचो। अगर हम खुद अलाउ कर रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं, तभी तो सामने वाला अपना हाथ और पैर ऊपर रख सकता है। अगर हम अलाउ नहीं करेंगे, हम अलाउ, ओके, थोड़ा सा और लेयर डीप चलते हैं, ये बाकी सबके लिए भी है जो सुन भी रहे हैं और जो देखेंगे मैं वीडियो। इन ए रिलेशनशिप, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मेरा सब्जेक्टिव पर्सनल ओपिनियन है, सब्जेक्ट टू द डिस्क्लेमर व्हिच विल बी देयर ऑन द इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, कि as a man cannot have a liberty to raise hand on a woman. How does he get the liberty? When the woman allows the man to raise his hand. Am I right or wrong? हाथ कैसे कोई उठा सकता है आपके ऊपर? क्योंकि आप लिबर्टी देते हो तो हाथ उठता है, आप लिबर्टी नहीं दोगे तो हाथ नहीं उठा सकता कोई भी। यस और नो? डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होता है? क्योंकि एक फीमेल अलाउ करती है। अलाउ इन द सेंस, वो ये नहीं कहती कि मुझे मारो। जब पहली बार हाथ उठता है जाने अनजाने में या गुस्से में, थप्पड़ फिल्म देखी है किसने? यस। नहीं देखे तो देखो, समझ में आएगा क्या मतलब है। मतलब ये है कि कैसे हक हो गया थप्पड़ मारने का, जस्ट बिकॉज यू आर द हस्बैंड। ये अथॉरिटी किसने दी? ऐसे तो फिर वाइफ को भी हक है, लेकिन वो बर्दाश्त करती रहती है। बर्दाश्त क्यों? मेरा सवाल है, क्यों बर्दाश्त करना है? आप अलाउ ही मत करो ना। आप उसी को उस मोमेंट पे ही, जब सामने वाला आपसे बदतमीजी करता है, उसी मोमेंट पे उसको रोको, उसी मोमेंट पे काटो, उसी मोमेंट पे बोलो। या अगर उस मोमेंट पे नहीं समझ में आ रहा तो अगले मोमेंट पे बोलो। आप समझे? लेकिन आप अपनी बात तो रखो। लेकिन हम डर जाते हैं, जैसे बहुत सारी फीमेल्स डोमेस्टिक वायलेंस में डर जाते हैं कि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा ख्याल कौन रखेगा। वो डर क्यों है? क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हो। जिस दिन फाइनेंशियली और इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उस दिन घर से बाहर निकलना रखना आसान हो जाता है या मुश्किल हो जाता है? सोचो। आसान हो जाता है। सेकंड पॉइंट इज दैट कि सोशली भी सोचने लग जाते हैं कि अगर ऐसा कर दिया तो समाज Exactly. कैसे? बट मैं एक्चुअली ना समझ नहीं पा रहा काफी टाइम से, समाज जो हम करते हैं, समाज का मतलब क्या है? समाज कौन है? क्या समाज कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जिसका कहीं हेडक्वार्टर्स है? या समाज वही है हमारे आसपास के लोग? यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इस समय 42 पीपल आर देयर, 42 पीपल इनटू 4, मतलब जो आपके घर के परिवार के लोग हैं, इनटू अनदर 4 जो आपके रिलेटिव्स कजन है, इनटू अनदर 4 इनटू अनदर 4 कॉन्स्टिट्यूट्स अ समाज। करेक्ट? ये समाज कौन है? इसका मतलब ये है, एक्चुअली पता क्या, सारी प्रॉब्लम झूठों की है। हमने झूठ को जिंदगी का भागीदार बना लिया। हम सच के साथ नहीं रहते। तो हो क्या रहा है ना, हम हमेशा डरते रहते हैं हर चीज में। ये जो 4 इंटू 4 लोग कौन है? आप ही के तो रिलेटिव्स कजन्स हैं। कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई समाज इन्हीं से तो कॉन्स्टिट्यूट होता है। हम इन्हीं से डरते रहते हैं कि ये क्या सोचेंगे। हमें समाज की कोई परवाह नहीं है, हमें परवाह है उन 4, 5, 8, 10 लोगों की जो हमारे रिलेटिव्स कजन्स हैं, ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये शायद हमसे बात करना बंद कर देंगे। अरे बात करना बंद कर देंगे तो कर देंगे, लेकिन आप उसके चक्कर में अपना जीवन खराब करोगे, सारी जिंदगी टॉर्चर बर्दाश्त करते रहोगे। ये सही है? मतलब हम खुद के साथ सब टॉर्चर बर्दाश्त करने को तैयार हैं, क्योंकि 4 लोग जिनको हम अपने कजन रिलेटिव्स जो भी कहते हैं, वो क्या सोचेंगे? क्या उनके जीवन में अपनी कोई परेशानियां नहीं है? क्या वो बिल्कुल सधे और सटीक और स्थिर हैं जीवन में? क्या उनकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है लाइफ में? क्या उन्होंने कभी कुछ उल्टी सीधी हरकतें नहीं की होंगी जीवन में? क्या गलत सही अच्छा बुरा नहीं किया होगा? या वो बिल्कुल भगवान का रूप है, अवतार पैदा हुआ और उन्होंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की होगी जीवन में? सोचो। अपनी गलती तो नजर नहीं आती ना किसी को भी। तो ठीक है ना, अगर उनको अपनी गलती नजर नहीं आती और हम उनको समझा नहीं सकते और वो समझ नहीं सकते, तो हम अपना जीवन सुधारते हैं, हम छोड़ देते हैं। हम उनकी परवाह ही क्यों करते हैं? फिर मैं ये कह रहा हूँ, हम उनके बारे में इतना सोचते ही क्यों हैं? रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ मीनाक्षी जी। हम सोचते ही क्यों हैं उनके बारे में? सोचिए, या हमें क्यों परवाह होनी चाहिए? ये तो समझ नहीं आता है। पता होता है कि दे हर्टेड अस,
लेकिन फिर भी हम लोग वही केयर और कंसर्न देते हैं कि चलो एक ना एक दिन सुधर जाएंगे, क्योंकि नहीं, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हम केयर और कंसर्न नहीं देंगे कि सुधर जाएंगे। बात यह है कि देखो, एक और इसके अंदर एक छोटी सी लेयर और होती है, शायद पता नहीं मैं आप पहुंच पाएंगे कि नहीं, या मैं समझा पाऊंगा कि नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है हम बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं? कभी कभी हम अच्छा इंसान बनने के चक्कर में भी बहुत सारी चीजें बर्दाश्त कर लेते हैं, और इसका एक और लेयर होता है कि हम शायद महान बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम सैक्रिफाइसिंग बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अपनी जिंदगी की तो धज्जे उड़ा रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि हम तुम्हारा भला कर पाएंगे। स्टार्टिंग ऑफ द सेशन वॉज, पहले खुद मास्क लगाओ, ऑक्सीजन इनहेल करो, पहले खुद स्ट्रांग हो जाओ। जब इस दर्जे पर पहुंच जाओ कि आपको लगे आप स्ट्रांग, अपने जीवन को सुलझा लिया, उधार उसको सेट कर लिया है, करेक्ट, उसकी सारी क्लैरिटी आ गई है, तब आपके अंदर से नेचुरली फ्लो करेगा वो केयर एंड कंसर्न। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अदरवाइज क्या होता है, जब हम उलझे हुए होते हैं और हमें लगता है कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हो सकता है एक लेयर हो, मुझे नहीं पता, वो लेयर आपको खुद को खोजना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पंजाबी कल्चर में बहुत ज्यादा सिखाया जाता था कि यार कि मतलब सैक्रिफाइसिंग नेचर बहुत ज्यादा, कि मतलब अपने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दो दूसरे के लिए, करेक्ट। एंड आई फील नो, पहले खुद को सक्षम बना लो ना। खाली ग्लास में से मैं क्या पानी किसी को दूंगा? अगर मैं मेरा ग्लास भरा हुआ है पानी का, करेक्ट, और मैं उसको कॉन्स्टेंटली भरता चला जा रहा हूँ, तो उस भरे ग्लास में से जो पानी और ज्यादा निकलता है वो अपने आप ओवरफ्लो करेगा ना लोगों के लिए। उसमें लोग अपने आप सब चीजें ढूंढ भी लेंगे और महसूस भी कर लेंगे। इंस्टेड कि मैं अपने आधे ग्लास में से आपको दूं, मैं ही दे दूंगा, तो मेरे लिए क्या बचेगा? लेकिन लोग ये चीज समझते नहीं है ना, दे कैटेगराइज एज शी इज सेल्फिश, ही इज सेल्फिश। तो ठीक है, सेल्फिश तो हर इंसान है। क्या सेल्फिश में एक्चुअली मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा डीप रूटेड कंडीशनिंग में हमारा बिलीफ फंस गया है कि हम सेल्फिश होना गलत है। मुझे बताओ, चलो सेल्फिश की परिभाषा बदल देते हैं आज। सेल्फिश का मतलब क्या होता है? सेल्फ के बारे में जो सोचता है, राइट? मुझे बताइए, इस पूरे ब्रह्मांड को जो आप महसूस कर रही हैं, जो देख रही हैं, जो सुन रही हैं, किसके थ्रू कर रही हैं? सेल्फ के थ्रू ही तो कर रही हैं। सेल्फ का मतलब क्या है? आपकी आंखें, आपकी आंखें देख रही हैं तो आप महसूस कर रहे हैं ना। जिस दिन आंखें बंद हो जाएंगी, आपके लिए ब्रह्मांड बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, राइट? जिस दिन कान बंद हो जाएगा, जिस दिन सुनना बंद हो जाएगा इस ब्रह्मांड के बारे में, जिस दिन स्किन के अंदर से टच निकल जाएगा या जीभ के अंदर से टेस्ट निकल जाएगा, तो ब्रह्मांड आपके लिए बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ब्रह्मांड है नहीं, ब्रह्मांड तो यहीं पर है, आप महसूस नहीं कर पा रहे थ्रू योर सेंसरी ऑर्गन, थ्रू योर सेल्फ। Whatever we experience in this universe, we are experiencing through this self. That basically means we are selfish. Selfish का मतलब यही है, whatever you're experiencing through yourself. The problem is when you become self-maniac, when you become egomaniac, when you become completely self-centered, जब आप अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर रहे हो, तब हम कह सकते हैं कि बहुत self-centered है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर देता है। ये सिर्फ ना शब्दों का हेर फेर है और कुछ नहीं है। हमारे दिमाग में सेल्फिश की कॉनोटेशन रॉन्ग है, लेकिन अगर मैं उसकी कॉनोटेशन चेंज करके एक नया पर्सपेक्टिव आपको दे दूंगा, दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग थ्रू, एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग दिस होल यूनिवर्स थ्रू सेल्फ, सो यू आर मेंट टू बी सेल्फिश, यू आर बाउंड टू बी सेल्फिश। आपके सर में दर्द हो रहा है लेकिन कहीं पे कोई वॉर चल रही है, तो क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? सर दर्द के लिए डिस्प्रिन खाना या जो वॉर चल रही है वो इंपॉर्टेंट है? डिस्प्रिन खाना तो बड़ा सिंपल है ना आकांक्षा जी, सिंपल ही तो है, फिर सेल्फिश ही तो है हम लोग, तो एक्सेप्ट कर लो ना, है तो है, अभी खत्म करो, क्या दिक्कत है? मेरे सर में दर्द है तो मेरे सर में दर्द है, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये कैसे सोच लूं भाई यहाँ पे वॉर चल रही है, इतने लोग मर रहे हैं, ठीक है मेरे को उनके लिए लव कंपैशन एम्पैथी हो सकती है, लेकिन इस समय मेरे सर में दर्द है, आई नीड अ डिस्प्रिन और आई नीड अ मेडिसिन। पहले तो वो है ना, बोलो। और ये हर इंसान के लिए है, दिस इज योर बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बोलिए। nowadays I notice one thing also कि लोगों को ना महान, एक तरीके से अभी आपने बोला ना कि महान बनना है, तो उनको जो भी करना है ना, उनको वैलिडेशन चाहिए कि हाँ लोग उसको अप्रिशिएट करें। ये चीज आजकल मैं बहुत ज्यादा नोटिस कर रही हूँ। अगर इवन अगर मैंने इसको किसी की एक सेकंड, बड़ा अच्छा टॉपिक है, आप बताइए क्या वैलिडेशन, दोबारा बोलिए क्या कहा आपने, रिपीट कीजिए। मैंने ये बोला कि अगर हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो हम सेटिस्फाई हो गए, वो इनफ नहीं होता है, लेकिन लोग उसको वैलिडिटी दें हमें कि हाँ तुमने ये किया है, अप्रिशिएट करें हमें, तब हमें वो वैलिडिटी मिलती है कि हाँ मैं ये काम एग्जैक्टली, क्योंकि ना हमारी सेल्फ वर्थ
बहुत लो है, इसलिए हम हमेशा दूसरे से वैलिडेशन मांगते हैं कि दूसरा अप्रिशिएट करेगा तो हमें लगेगा कि हमने कुछ अच्छा कहा है या अच्छा लिखा है या अच्छा बोला है या फिर अच्छा परफॉर्म किया है। आप समझे? वी आर कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। किसी ने मुझसे अभी बात हो रही थी ना इंस्टाग्राम की, आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, और वो बहुत सारी चीजों को समझने के लिए भी है। इनफैक्ट बहुत समय से आई डोंट इवन रिप्लाई टू द कमेंट्स आल्सो, और शायद डीएम्स में भी नहीं। उसके कुछ रीजंस हैं। उसका रीजन ये है कि मैंने कुछ समय पहले 6-8 महीने पहले देखा कमेंट्स में हो क्या रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लोग भी अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे, जो भी है। तो यू से थैंक यू एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ विशियस सर्कल ऑफ एप्रिसिएशन एंड वैलिडेशन। और क्या है कि मतलब, क्योंकि क्या होता है ना, वो आपकी ईगो को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देगा। फिर आपको लगेगा कि लोग अप्रिशिएट करेंगे तभी आपका वीडियो अच्छा है। आप समझे? जैसे हम कुछ लिखते हैं तो हम किसी को दिखाते हैं कि आप बताओ कि कैसा है। अरे आप क्या बताओ, आया मेरे अंदर से, मुझे अच्छा महसूस हो गया, खत्म हो गई बात। अगर मैं आप पे डिपेंड कर रहा हूँ कॉन्स्टेंटली, तो मैं आपसे वैलिडेशन सीख कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर कोई वॉइड है, जिस वॉइड को मैं आपसे फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी अप्रिसिएशन से। अच्छा, वो अप्रिसिएशन सच्ची है झूठी है भी नहीं पता। आपने कविता लिख दी, सामने वाला किसी आपकी बेहतरीन खूबसूरत कविता है, लेकिन सामने वाला किसी भलते ही मूड में था, उसको नहीं अच्छी लगी, उसने आपकी कविता की धज्जियां उड़ा दी। अब बताओ, क्या इसमें कविता खराब हो गई? लेकिन कविता तो बड़ी अच्छी थी। लेकिन आपने बहुत बुरा कुछ लिख दिया, सामने वाले को आपसे मोहब्बत है, उसकी नजरों में आप शायद गालिब भी हो, तो आपकी बेकार से बेकार कविता भी, क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव में आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छे हो, तो वो कविता भी बड़ी सुभान अल्लाह है। करेक्ट? तो ये सारा खेल पर्सपेक्टिव का है। हो क्या रहा है, जब हम वैलिडेशन मांगते हैं तो लोग वैलिडेशन देते हैं। जब हम मांगना बंद कर देंगे, जब उसको डिसॉल्व कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो लोग भी बंद कर देंगे। हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, परवाह ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर वॉइड्स है। वो वॉइड मैं बता देता हूँ क्या है। सबके अंदर वो वॉइड्स है। अगर आप समझना चाहते हो तो समझ लो, वो वॉइड है। बस इस ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही चीजें हैं जो चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। बाकी सब तो एक बेकार का हेर फेर है जिसमें गोल गोल घूम रहे हैं। One is to love someone and second is to be loved by someone. That's it. और कुछ नहीं है। You want to be loved by someone and you want to love someone. Love someone मतलब you want to share your love with someone. बस यही है, और कुछ नहीं है। बाकी सारी चीजें जो है बवंडर है, माया जाल है, जो आपको फंसाती है। उसमें शॉपिंग भी है, एडिक्शन भी है, सब्सटेंस भी है, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, घर भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, अचीवमेंट भी। अचीवमेंट क्यों करना है मैं बताता हूँ। अचीवमेंट क्यों करना है? सारा दिन सुबह से लेकर रात तक मेहनत क्यों करनी है? क्योंकि जब मुझे कोई अवार्ड मिलेगा तो मेरे पापा कहेंगे वाह बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तब लगेगी वैलिडेशन की भपकियां तब लगेगा वाह, आज मैंने जीवन में कुछ किया है। अरे मेहनत आपकी कर लिया आपने, सब चीजें कर ली। मुझे याद है, बड़ी अजीब सी बात है, मैं 3rd स्टैंडर्ड में शायद मैं 3rd 4th 5th 6th टॉप किया था मैंने। तो मुझे याद है एक दिन मेरे पापा ने कह दिया था, बेटा क्लास में ज्यादा बच्चे नहीं है क्या तू ही टॉप करके आ जाता है हर बारी आप समझे? तो ये सामने वाले का पर्सपेक्टिव है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या गलत है क्या सही है, उन्होंने बस किसी फितूर में बोल दिया होगा। बट हो सकता है ये फितूर की बात आपको बड़ी चुभ जाए जीवन भर। हो सकता है कि नहीं हो सकता? सोचो, हो बहुत कुछ सकता है। मैं कह रहा हूँ इन सब चीजों को डिसॉल्व कर दो ना, समझो जरा चाहिए क्या। बेसिकली लव ही तो चाहिए इन एवरी फॉर्म, ईदर द नीड टू बी लव्ड। तो उस लव को जब आप शेयर करना शुरू करते हो ना, जब आपके अंदर ग्रो करता है, जब आप शेयर करना शुरू करते हो, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट लव फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म्स। हम उस लव को ना एक फॉर्म में देख लेते हैं। वो लव का फॉर्म क्या है? या तो पेरेंट्स से मिल जाए, या गर्लफ्रेंड से मिल जाए, बॉयफ्रेंड से मिल जाए, या फिर हस्बैंड से मिल जाए। बस 4 लोग ही दिखते हैं जीवन में, या एक बेस्ट फ्रेंड है या कोई कजन है, बस। ऑल आई एम सेइंग इज दायरा बढ़ाओ, दायरा बढ़ाओ, दायरा बढ़ाओ, प्रेम का दायरा बढ़ाओ। जब प्रेम का दायरा बढ़ेगा तो बहुत जगह से महसूसियत होगी। फिर अपने आप वो सारे वॉइड्स जो बचपन से लेकर आज तक वो सारे फिल हो जाएंगे। जब वो फिल हो जाएंगे तब जीवन में सेलिब्रेशन आता है, क्योंकि तब कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। तब मुझे ना आपकी अप्रिसिएशन की जरूरत है। जब अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है तो आपके क्रिटिसिज्म की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे कर लो जितना ट्रोल करना, क्या होगा उससे? मैंने चेक ही नहीं करना, मेरे को देखना ही नहीं है। आपने अप्रिशिएट भी कर दिया तो भी रिप्लाई नहीं है, आपने ट्रोल कर दिया तो भी कोई रिप्लाई नहीं है। तो बेचारा थक ही जाएगा। कब तक बेचारा बोलता रहेगा उल्टा सीधा? कभी ना कभी तो थक ही जाएगा। आप समझे? क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है ना मेरा। तो आप भी लेना देना बंद कर दो धीरे धीरे। जब आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या फिर जो भी सेल्फ वर्थ ही कह देते हैं, वो एकदम सेंटर्ड हो जाती है ना, तो आपको समझ में आ जाता है मुझे किसी दूसरे से कुछ चाहिए नहीं। जो सेशंस कर रहे हैं, मुझे आपसे कुछ चाहिए थोड़ा ना।
करेक्ट, कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए जीरो पे है ना सब। तो जब जीरो पे है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कमाल का एक मैंने कुछ सेंटेंस लिखा भी था उस दिन कि जीरो ना बड़ा कमाल का शब्द है। स्वयं में तो फकीर है, स्वयं तो जीरो जीरो होता है, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ जाता ना तो उसको राजयोग दिला सकता है। मतलब जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसकी कितनी कीमत बना सकता है तो आप सोच भी नहीं सकते। तो जीवन में जीरो बन जाओ कि अगर आप किसी के साथ जुड़ जाओ ना तो जिसके साथ जुड़ जाएगा, अगर वो 1 है तो 10 हो जाएगा, 2 है तो 20 हो जाएगा, 100 है तो 1000 हो जाएगा। जिसके साथ जुड़ जाओ उसकी कीमत कितनी बढ़ा देता सोचो। खुद में फकीर, लेकिन जब जुड़ जाएगा किसी के साथ तो उसकी जिंदगी में राजयोग ला सकता है। आप सेंटर्ड और बैलेंस्ड हो जाओ, बाकी सब चीजें छोड़ दो। इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी। अभी आपने बोला कि हम किसी से प्यार चाहते हैं या फिर कोई हमें प्यार करे, ऐसा। तो एक चीज है कि कोई अब ना लोग प्यार देना नहीं चाहते लेकिन चाहिए सबको, देना नहीं है। हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि एक्चुअली पता है क्या, क्योंकि ना अपने अंदर का वॉइड से बाहर ही नहीं आ पाते ना। इट्स एवरीथिंग इज मी सेंट्रिक। पहले मुझे मिल जाए, पहले मैं मेरा कुआं भर जाए, उसके बाद वो कुआं कभी भरेगा ही नहीं, क्योंकि हम दूसरों से मांगते रहते हैं, भर नहीं सकते। वी आर एक्सट्रैक्टिंग दैट लव फ्रॉम पीपल, वो कभी नहीं भर सकता। एट द एंड ऑफ द डे जब 40 50 60 साल के हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। एक्चुअली पहले समझ में आना चाहिए, तब तक देर हो जाती है। समझ में आ जाता है कि वो कुआं ना कोई भर नहीं सकता, क्योंकि उसमें ग्रीड बहुत है। कोई जरा सी केयर करेगा, हमें लगता है और केयर करे, थोड़ी और केयर करता है और केयर करे, फिर वो और केयर करता है, फिर और केयर करे, फिर वो जमीन पर दंडवत प्रणाम कर लेता है, आपको लगता है नहीं नहीं इससे भी ज्यादा करे। आप समझे, क्योंकि हमारा वो कुआं कभी भरता ही नहीं है। वो इनसेशिएबल है। मतलब जैसे ग्रीड इनसेशिएबल होती है ना, जितनी मर्जी शॉपिंग कर लो कपड़े खत्म ही नहीं होते। लोगों के अलमारी में कपड़े भरे पड़े हैं, राइट। लाइक पहनने वही 3 4 कपड़े, लेकिन ना किसी को देने हैं, ना बेचने हैं, ना कुछ करना है, वो पड़े रहते हैं अलमारियों के अंदर। जबकि पहनते आप हमेशा वही 4 कपड़े हैं जिनके अंदर आप खूबसूरत दिखते हो, आपको लगता है आप खूबसूरत दिखते हो, बाकी सब पड़े रहते हैं। कुछ लोग तो अगली सर्दियों के, अगली से अगली सर्दियों के भी संभाल के रखते हैं कि पता नहीं कब काम आ जाएंगे 5 साल के बाद। आप समझो, तो ग्रीड है एक्चुअली, वो इनसेशिएबल है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। उसको एट द एंड ऑफ द डे उसकी ना अंडरस्टैंडिंग खत्म करती है। मतलब डिजायर ड्रॉप नहीं कर सकते आप, क्योंकि डिजायर जैसे जैसे ब्रह्मांड आगे बढ़ता है डिजायर्स आपके अंदर जागृत होती है। लेकिन जब मुझे डिजायर की फ्यूटिलिटी दिख जाती है, मतलब जब मुझे समझ में आ जाता है, हाइपोथेटिकली एक डिजायर है सिगरेट पीने की, करेक्ट। कॉलेज में कुछ दोस्त सिगरेट पी रहे थे, ऐसा लगा वाह क्या मजा आ रहा है यार, आई एम फीलिंग लाइक अ हीरो, मचिज्मो, यू नो स्टाइल। लेकिन जब आपको एक समय पे समझ में आ जाता है कि यार ये कर क्या रहा हूँ मैं, धुआं अंदर ले रहा हूँ, धुआं बाहर छोड़ रहा हूँ, धुआं अंदर ले रहा हूँ, धुआं बाहर छोड़ रहा हूँ, इससे मेरी वोकल कॉर्ड्स खराब हो रही है, मेरे को कैंसर के मरीज बन सकता हूँ मैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बोल नहीं पा रहा, मैं अस्थमा का मरीज हो रहा हूँ, मैं ब्रोंकाइटिस का मरीज हो रहा हूँ। तो क्या होता है, जब हमें समझ में आ जाती है तो ड्रॉप हो जाती है ना चीजें। तो सारा खेल समझ का है। जिस दिन आपको समझ में आ जाता है कि सारा खेल ग्रीड से उत्पन्न हो रहा है और ये ग्रीड आपको आगे बढ़ा रही है और आप फंस रहे हो, तो आपकी डिजायर ड्रॉप हो जाती है। जब डिजायर ड्रॉप हो जाती है तो बाकी सारी चीजें अपने आप बैलेंस में आ जाती है। तो उसी के अंदर फिर आप प्रेम को भी महसूस करते हो, फिर वैलिडेशन भी छूट जाती है, एप्रिसिएशन क्रिटिसिज्म भी छूट जाता है। धीरे धीरे आप सम में आ जाते हो। सम मतलब सेंटर्ड एंड बैलेंस, संभाव, इक्वानिमिटी, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं। मुझे अभी एक और टॉपिक याद आया, लेकिन अभी छेड़ूंगी नहीं, बहुत लंबा चलेगा। करेक्ट, बहुत सारे लोग हैं, उनको भी सवाल पूछने दो जरा। थैंक यू। Okay, thank you, bye bye. Moving on to Jayashree ji, then we come to Simran ji, then we come to Rashi. बोलिए। हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दोस्त लगातार पूछते रहते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा कुछ 2-3 महीनों तक चलता रहता है, फिर सारा कुछ बंद। फिर 2 साल चले गए, 3 साल चले गए, कोई कुछ पूछा नहीं, मैंने भी किसी को फोन नहीं किया, ऐसा कुछ। फिर अचानक से 3 साल के बाद पूछ रहे तूने कभी कॉल ही नहीं किया, तो मैं उससे क्या रिप्लाई करूं? अरे उनको बोल दो आपने भी कौन सा कॉल किया हमें। तो वो मुझसे हाथ लगाए बैठते हैं कि तूने भी तो कॉल नहीं किया। अरे तुम लोगों को तो मुझे ढूंढना नहीं है, मुझे मेरे बारे में कुछ जानना नहीं है, तो मैं भी क्यों जानूं किसी के बारे में। जयश्री जी बात वही है, ये फिर वही वॉइड ही होता है बेसिकली। हर किसी को चाहिए कोई मुझे पूछे। आप समझे, जैसे आपके दोस्त एक्सपेक्ट करे कि कोई मुझे पूछे। अरे आपके पास फोन है, आप भी तो मैसेज कर सकते हो, लेकिन वहां पे शायद हो सकता है कि ईगो का फ्लेयर हो, या फिर इतना ईगो के फ्लेयर की जगह इतना लैक हो सकता है कि यार
मैं चाहता हूँ लोग मुझे मैसेज करें, मुझे कॉल करें, ताकि मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस हो, मेरी इंपॉर्टेंस या मेरे एग्जिस्टेंस का कोई वैलिडेशन हो। आप समझे? जैसे कभी कभी मेरी मॉम मुझे कह देती है, अरे तूने फोन नहीं किया, 3 दिन हो गए। तो मैंने कहा आप भी तो कर सकते हो, फोन आपके हाथ में है। नहीं नहीं, तू करता तो ज्यादा अच्छा लगता। तो क्या मतलब है, डीपेस्ट लेयर में जाओ तो बेसिकली क्या है, एग्जिस्टेंस की वैलिडेशन महसूस होती है कि अगर मैं करूंगा तो उन्हें लगेगा हाँ चलो कोई तो है ख्याल रखने वाला, कोई तो है जो पूछ रहा है, कोई तो है जो ध्यान रख रहा है। आप समझे, ये वो है और कुछ नहीं है। जबकि रिलेशनशिप में आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। क्योंकि रिलेशनशिप में अगर आप रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा अलग हो गया, म्यूचुअल ट्रांजैक्शन हो जाता है। अगर हम प्रेम की बात करते हैं, प्रेम में कोई म्यूचुअल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, प्रेम में कोई ईगो नहीं हो सकती, प्रेम में ये नहीं हो सकता कि देखो मैंने तुम्हें 4 फोन कर दिए तो तुमने मुझे 2 ही क्यों किए। तो इसका मतलब ये है आपको प्रेम नहीं है, आपकी ईगो कॉन्स्टेंटली क्रेव कर रही है अटेंशन की। करेक्ट? और मोस्ट ऑफ द पीपल हैव मिसकंस्ट्रूड लव एज ईगोइक प्रेजेंस इन देयर लाइफ। उनको वो एक्चुअली ईगोइक प्रेजेंस है जिसके अंदर वॉइड है, लैक है, और उस वॉइड और लैक को ईगो कॉन्स्टेंटली ट्रिप करते रहती है उसके आसपास। और इसमें आपको सिर्फ फिल करना है किसी भी चीज, किसी भी केयर अटेंशन से, लेकिन हम उसको प्रेम समझ बैठते हैं। और इसलिए कहते हैं तूने 2 फोन किए, मैंने 4 किए, मैंने रात को 12 बजे मैसेज किया था, तूने चेक कर लिया, उसके बाद रिप्लाई नहीं किया, उसके बाद अगले दिन मैसेज नहीं किया, तो इसका मतलब तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। ये इतनी छोटी छोटी तकियानुसी बातों को हम प्रेम का नाम दे देते हैं। प्रेम, लव, मोहब्बत, इश्क, शायद मैं समझा भी नहीं पाऊंगा क्या है। मतलब ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इट्स वेरी एक्सपीरियंशियल। इसके लिए कोई भी शब्द, इसके लिए शब्द ही बेकार है टू बी ऑनेस्ट। शब्दों से जो परे है वो प्रेम है, जिसमें शब्द भी ना हो। कि मतलब आपने किसी को देख लिया और महसूस कर लिया और उसकी आंखें पढ़ ली, उसको, उसकी साइलेंस को महसूस कर लिया, और वो शब्दों से परे हो गया, जिसमें ना कोई ईगो है, ना जिसमें एब्सोल्यूट ट्रूथ है, सच, ओपननेस है, ऑनेस्टी है, ट्रस्ट है। आप समझे, वो सब चीजें होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आप कह रहे हैं ना, ये वही हो जाता है कि ईगोइक अटेंशन है बस एक। तो अब आप ये फैसला करो कि ऐसे लोगों के साथ जीवन में जुड़ के भी करोगे तो करोगे क्या, क्योंकि ये लोग आज भी यही करेंगे और 6 महीने बाद भी यही करेंगे और 1 साल बाद भी यही करेंगे कि देखो तुमने मुझे फोन नहीं किया, तुम कर लेते, तुम कहाँ बिजी हो गए। तो आप भी बोल देना कि देखो मैं बिजी थी बहुत ज्यादा। ईगो हर्ट कर दो, उनकी ब्रूस कर दो, मैं बहुत बिजी थी, आई एम वेरी बिजी थी डेज। अरे कर दो हर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खुद की भी तो बहुत बारी हर्ट होगी, एक बारी हर्ट कर दो। सॉरी आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम फॉर यू। अगर इतने तुम्हारे पास टाइम था तो यू कुड हैव कॉल्ड मी अप। तो ऐसा है, मतलब अब इसमें क्या ही कहा जाए, तो बड़ी छोटी सी बात है, अपने हिसाब से हैंडल कर लो जैसे भी करनी है। अभी मैं तो सिर्फ मीनिंग समझा सकता हूँ। ओके सर, ठीक है, थैंक Thank यू you, राशि जी, थैंक यू राशि जी। यस सर। यस बोलिए। अरे सब सो तो नहीं गए वीडियोस ऑफ करके, या खाना पीना तो नहीं चल रहा सब साथ में? सर मेरा क्वेश्चन है कि प्रेजेंट बोलो। मोमेंट में हम होते हैं, एक्सेप्टेंस भी हो जाती है, लेकिन जो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज है वो प्रेजेंट में आके बार बार परेशान करती हैं, और उससे हम प्रेजेंट को एंजॉय भी नहीं कर पाते और आगे बढ़ भी नहीं पाते। तो उससे डील कैसे करना है? डिलीट कर दो पास्ट, खत्म करो। डिलीट कर दो फिर भी याद आ जाता है क्योंकि एक्चुअली वो ब्रेन डिलीट में तो होता नहीं है ना सेफ है, पूरा। हाँ, वो क्योंकि वक्त के एक्चुअली साथ ही हील होता है। हाँ वो वक्त के साथ, वो एक्चुअली ना, जब आपकी बात सही है, बड़ा अच्छा सवाल भी है, जवाब भी यही है कि डिलीट कर दो पास्ट। तो डिलीट का मतलब ये है, वो डिलीट ऐसे कोई बटन तो है नहीं कि हमने प्रिक किया और डिलीट हो गया, बस ये अपने फोन में से एक्सेस निकाल दो सबसे पहले, तो मुझे लगता है वो भी जैसा कर दिया वो भी पर कर नहीं दिया। होता। अब वो डिलीट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो ना पेन के इंप्रेशंस और रेजिड्यू छूट गया आत्मा पे। करेक्ट? ओके सर। वो पेन का रेजिड्यू छूट जाता है ना, किसी के साथ कुछ गलत हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ रिलेशनशिप में या कहीं पे या लाइफ में, तो उसके रेजिड्यू हमारी आत्मा पे ना इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं। वो कैसे होगा? अब वो धीरे धीरे जब हील होगा ना, एज वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स लाइफ, as somebody else may come into your life, or as you move ahead in your life in any form, चाहे वो करियर है, चाहे वो लाइफ है, चाहे वो रिलेशनशिप्स है, चाहे फाइनेंस है, जो भी है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वो रेजिड्यू है ना अपने आप ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे। वो सारे इंप्रेशन जैसे धब्बे पड़ जाते हैं, समझ लो ब्लैक डॉट्स ऑन द सोल। एग्जाम्पल है कि कागज पे ब्लैक ब्लैक धब्बे पड़ गए हैं। अब क्यों, जब कोई नया इंसान आएगा या आप आगे जीवन में बढ़ोगे तो अलग रंग आते हैं जीवन के अंदर, फिर वो काले धब्बे ना रंगों में धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। somebody will come or you step ahead in life in any form. I'm not saying somebody मतलब intimate relationship, हो सकता है भाई आ जाए, बहन आ जाए, दोस्त आ जाए,
पापा मम्मी आ जाए, कोई और इंसान, कोई स्ट्रेंजर आ जाए, कोई कलीग आ जाए, जो जीवन में आ जाता है, दोस्त के फॉर्म में, एक्वेंटेंस के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, and then you start healing, then the residue of this impression that is already on your soul will start to dissolve automatically, और फिर अपने आप पास डिलीट हो जाता है, क्योंकि अब उस पास की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उस एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपने उससे बेहतर एक्सपीरियंस महसूस कर लिया जीवन में। यस सर। करेक्ट। जब हम बेहतर एक्सपीरियंस महसूस कर लेते तो उसको फिर माइंड को लगता है, देखो माइंड को कैप्चर करना है। सर जब तक बिजी रहता है तब तक कुछ नहीं होता, और हाँ, जैसे ही जब खाली होते हैं एकदम पेनफुल, बिल्कुल रिपीट हो जाता है फ्लैशबैक। एक्चुअली नहीं, उल्टा बोल रहे हो आप। जब हम खाली होते हैं तो मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, जब दिमाग भरा हुआ होता है तब पेन है। पेन क्या है? थॉट क्या है? जब थॉट्स कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो आप खाली हो क्या आप भरे हुए हो? सोचो। हाँ वो बात भी सही है। नहीं मतलब हमें ना, जैसे जिस हमें काम को मैं बेसिकली आप करती कह रहे हूँ हो बिजी, आप बिजी होने की बात कर रहे हो, कुछ भी करेक्ट। करके लेकिन जो मैं आपको आपको, प्रोडक्टिव लगता हो हाँ, उसमें मैं फिर आपको कह फील रहा हूँ नहीं कि होता। एक और लेयर को समझो। आइडियली हम मेडिटेशन के थ्रू खुद को खाली करते हैं, हम एक दूसरे से जब बात करते हैं, शेयर करते हैं, तो खुद को खाली करते हैं। तो खाली जो है ना, एम्प्टी माइंड, इट इज नॉट डेविल्स वर्कशॉप, इट इज एक्चुअली गॉड्स वर्कशॉप। क्योंकि जब हम खाली तो होना चाह रहे हैं ऑल द टाइम, आपने दोस्तों से बातें जब अंदर भर जाते हो बहुत ज्यादा, तो ऐसा लगता है कि दोस्त को फोन करके बात करनी है, आधा घंटा रो लेना है बस। तो आप खाली कर रहे हो खुद को। जब खाली कर लेते हो तो कैसे अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब भरे होते हो तो रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन होता है कि नहीं होता? मेरे अंदर बात है, मैं किसी से कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा, अंदर घुटन हो रही है। तो खुद को खाली करने का प्रयास करो। जो हम ये बात कर रहे हैं ना, जो पेन है, ये पेन थॉट से आ रही है, थॉट रिवॉल्व कर रहा है गोल 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 गोल, तो आप भर रहे हो। भरो मत, खुद को खाली करो। एम्प्टी योरसेल्फ, एम्प्टी। हमेशा याद रखना, जितना आप एम्प्टी करते चले जाओगे, शेयर एंड ग्रो इज अ मीडियम ओनली टू एम्प्टी, दैट्स इट। इस यहाँ पर आके बहुत सारे लोगों को सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि आप खुद को खाली कर पाते हो। आप अपने जीवन के बारे में कुछ बोल सकते हो, कुछ शेयर कर सकते हो, राइट? कुछ अपनी प्रॉब्लम किसी से बात कर सकते हो। सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता, राइट? लेकिन एटलीस्ट कुछ बोल तो सकते हो। जो बात अंदर ही अंदर कचोट रही है, जो बात अंदर ही अंदर तंग कर रही है, जिसकी वजह से परेशान हो रहे थे सुबह से लेकर रात तक, एटलीस्ट वी कुड से इट आउट। तो क्या सुकून नहीं है? बस इतना खाली करो। Okay. Okay, moving on to Thank you, Simran sir. ji. Thank you, Rashid ji. Moving Hello. on to Simran ji. Yes. हेलो सर। Hi. मेरा अजीब का सवाल है। मैं पहले कुछ ज्यादा ही रिएक्शन करती थी, रिएक्ट करती थी, गुस्सा भी करती थी, बट अभी मतलब 1-2 महीने हो गया मैं एकदम क्वाइट हूँ। मैं अपने उसमें रहती हूँ, मजे में, है ना। जो भी मुझे अब फोन करके नेगेटिव थॉट्स, मतलब कुछ बातें बोलते हैं, उन लोगों को मैं कट ऑफ कर रही हूँ। अब मुझे कभी लगता है ये ठीक ही है, अच्छा ही है, फिर कभी लगता है इंसान ये रिएक्शन तो करना पड़ता है, गुस्सा भी आना होता है। अब ऐसे तो मतलब मुझे डर लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि आप ब्रह्म देवता डर बनते लग चले रहा जा है रहे कि हो। क्या ईश्वर का होगा। अवतार बनते चले जा रहे हो कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा किसी चीज से। आपकी वीडियो के साइड इफेक्ट इन पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, यही होगा I like शायद। this. ओए होए कि हम क्योंकि इंसान मुझे से, ह्यूमन से इतनी सुपर बातों से ह्यूमन तो मैं नहीं बनते जा रहे। गुस्सा होती थी, हाँ, अभी I कुछ भी get it. नहीं, मतलब रिएक्शन नहीं, रिएक्ट नहीं करती हूँ। It is just a transitional phase. It is a transitional phase, क्योंकि हम एक एक्सट्रीम में थे, अब एक एक्सट्रीम में आ गए। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, अपने आप जीवन सेंटर में आ जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप गुस्सा करना शुरू कर दोगे। देखो बड़ा एक और, जैसे हमने पहले भी बात की थी, जब हम किसी चीज की फ्यूटिलिटी को देख लेते हैं तो चीज ड्रॉप हो जाती है। अगर हमने गुस्सा कर करके देख लिया कि हमारा नुकसान हो रहा है, हाँ सॉरी, हम ही परेशान हो रहे हैं, तो एक पॉइंट पे जाके समझ में आ जाता है, हम गुस्सा करना अपने आप सप्रेस भी कर देते हैं शायद, या उसको डिसॉल्व कर देते हैं। करेक्ट। फिर जब ये सब चीजें डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं, तो भी ऐसा लगता है हमें कि हमारी ईगो खत्म हो गई, हम जीरो पे आ गए। ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है। फिर कोई इंसिडेंट होगा जीवन में कुछ टाइम के बाद, ऐसे एक हल्का सा ट्रिगर होगा और 1 सेकंड में फ्लिकर हो जाएगा। बस उस समय पे और पहले वाले समय में फर्क सिर्फ इतना कि यहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस रहेगी। यहाँ पे मेरे अवेयरनेस रहेगी। जमीन आसमान से फर्क हो गई है अभी। हाँ, मुझे डर लग रहा है, कुछ तो नहीं हुआ है मेरे अंदर। किस बात का डर लग रहा है बताओ? चलो किस बात का डर नहीं लग रहा है? मतलब रिएक्शन, मतलब इतनी बातों से मेरी रिएक्शन होती थी, गुस्से होती थी। अभी कोई मुझे आकर मुझे बोलता है हाँ
उस टाइम में तो मैं करती हूँ हाँ ऐसे कर, फिर बाद में वो नहीं होता है। मतलब पहले जैसे तो कुछ भी नहीं है के तभी रिएक्शन तो करना होता है, ऐसा लगता है। फिर मुझे अभी आता भी नहीं है के अब मैं किसे करूँ। एक्चुअली तो अगर रिएक्शन नहीं आता है तो अपने आप में अच्छी बात है, क्योंकि हाँ। रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में साइलेंस का गैप होता है। मतलब किसी ने ट्रिगर किया, एक होता है कि मैंने इमीडिएटली रिएक्ट करके उल्टा सीधा बोल दिया, एक है कि मैंने उसकी बात को सुना, समझा, एसिमुलेट किया, महसूस किया, फिर एक रिस्पॉन्स दिया। तो वो रिस्पॉन्स उसके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है। तो ऐसा तो हो नहीं रहा, मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो रहा है कि आप मंक बन गए, कोई कुछ भी कह रहा है और हमें से शांत बैठा, हमें पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना, अभी स्टेज पे तो नहीं पहुंचे। वो अंदर सुपर कॉन्शियसनेस की हाई स्टेज है कि जहाँ पे हर बात आपके थ्रू पास हो रही है। अभी सिर्फ ये है कि हम न्यूट्रल स्टेट पे आ रहे हैं। ऑल आई एम सेइंग इज, इसको हम रिएक्शन को बस रिस्पॉन्स में तब्दील कर देते हैं कि जब कोई रिएक्ट कर रहा है, जब कुछ बोल रहा है, तो इंस्टेंट ट्रिगर ना होके हम उसको थोड़ा सा शांति से सोच के, मैं जैसे गुस्सा आता है तो हम 10 सेकंड का पॉज कैसे ले लेते हैं, ये एग्जैक्टली वैसे होता है कि आपने कुछ कहा, मैंने आपकी बात सुन ली, 10 सेकंड महसूस भी कर ली, एसिमुलेट कर लिया, अब मुझे लगता है इसका ये रिस्पॉन्स सही है तो मैं रिस्पॉन्स दे देता हूँ। 90% ऑफ द टाइम वो रिस्पॉन्स सही हो जाता है, क्योंकि आपने अपने आप को एक एक्सटेंसिव स्पेस में डाल दिया। हमने स्पेस ले ली ना 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, तो शांत हो जाता है दिमाग, स्थिर हो जाता है। वो बेहतर जवाब भी दे सकता है, बेहतर सिचुएशन को हैंडल भी कर सकता है, और सामने वाले को भी बेहतर बना सकता है, और खुद को भी। इतना ही सिंपल रखते हैं अभी। जब आप मंक स्टेज में पहुंच जाएंगे, जहां सब चीजें आपके थ्रू पास हो रही हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, तो हम आगे भी बात करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, लेट इट पास थ्रू यू, डोंट वरी, कुछ नहीं हो रहा, इट्स जस्ट अ फेज। मतलब ये आपके वीडियो का ये असर होगा शायद। वो तो मुझे पता नहीं, अपनी अपनी ग्रहण करने की क्षमता और शक्ति भी होती है। जो जैसा ग्रहण करता है, जो जिस दिशा में जाना चाहता है, जिसकी जो कॉलिंग होती है, हुआ ना तभी मुझे डाउट फील हुआ रहा। हाँ देखिए, पता है सिंपल क्या होता है, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन हर कोई आपकी जैसी बात तो नहीं कर रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये है, हम जैसे ग्रहण करते हैं और जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं ना, वो दिशा हम तय करते हैं, कोई और तय नहीं करता। सो हो सकता है आपने अपने अंदर ये दिशा तय की होगी कि मैंने बहुत रिएक्ट कर लिया, मैंने बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड गुस्सा कर लिया, अब मुझे उस दिशा में नहीं जाना क्योंकि मेरा नुकसान होता है, अब मैं थोड़ा न्यूट्रल हो जाऊंगी या नॉन रिएक्टिव हो जाऊंगी। तो उसका बेनिफिट भी आप ही को मिल रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर पीसफुल, यू आर एट ब्लेस, यू आर इन जॉय, यू आर हैप्पी। पहले एकदम माइंड डिस्टर्ब होता था, अभी नहीं, अब एकदम मतलब कूल चिल। कूल रहता है, तो इस यहाँ तक पहुंचने के लिए तपस्या भी तो करनी पड़ती है ना, वो आपने की है तो उसका एक रिजल्ट मिल रहा है, तो एंजॉय एंड एम्ब्रेस इट। ये ज्यादा दिन वैसे भी नहीं चलती, क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टेंटली खुद को फीड इन करना पड़ता है, बीच बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है। लाइफ हमेशा ऐसे नहीं चलेगी, लाइफ ऊपर नीचे चलती रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी हमेशा सम में रहता हूँ, एक आध मिनट हो जाता है, कभी कभी ऊपर चीजें हो जाती हैं, आप ऊपर हो जाते हो, फिर आप नीचे भी हो जाते हो, फिर आप थोड़ा सेंटर में आ जाते हो, फिर आप ऊपर हो जाते हो, फिर आप नीचे हो जाते हो, फिर आप सेंटर में आ जाते हो। बस एक अवेयरनेस रहती है कि अगर ऊपर हो गए तो फिर खुद को नीचे ले आओ, अगर नीचे हो गए तो खुद को ऊपर ले आओ। बस एक अवेयरनेस, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे किसी पार्टिसिपेंट के साथ, राइट, आई थिंक गोविंद के साथ बात कर रहे थे अवेयरनेस की, करेक्ट। बस इतना ही अवेयरनेस रखनी है और कुछ नहीं, बस सिंपल। आप भी करते हो फिर? 100% करना पड़ता है, मतलब कभी कभी निकल जाता है। अभी हम लोग कहीं मैजिक वगैरह गए थे तो निकल के रिएक्शन, मुझे नहीं कुछ उल्टा लगता सीधा हो गया। आपको देखकर आप तो एकदम नहीं, पॉजिटिव, आकर ऐसा कोई कुछ बोले वो भी नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है कभी कभी। हाँ, लेकिन उस स्तर पे नहीं होता जैसे 20 साल पहले होता था या 10 साल पहले होता था, कि मतलब अब ये नहीं होगा, मतलब वो उस तरह से आवाज नहीं निकलेगी, उस तरह का गुस्सा नहीं होगा, उस तरह का रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन होगा रिएक्शन, लेकिन अलग तरीके से, उसका तरीका बदल जाता है, बस और कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाता है। एक है कि इस सुर पे बात कर रहे हैं, फिर आपका सुर नीचे हो जाता है, लेकिन बात का जो सेंटर है वो वैसा ही रहता है। सो ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ऑल्सो लाइक यू, डोंट वरी अबाउट इट। बट ये द ओनली थिंग दैट आई ऑलवेज कीप इज कीपिंग एन अवेयरनेस। ये अवेयरनेस का चक्रव्यूह करो। सो अवेयरनेस का चक्र हमेशा चालू रहता है, कॉन्स्टेंटली कॉन्शियसनेस का, कि खुद को ऑब्जर्व करते रहना कि लिसन, निकल गया यार, इट्स ओके। अब निकल गया, लग रहा है कि सामने वाले को हर्ट हो गया, तो सॉरी मांग लो, खत्म करो, क्योंकि गलती आपकी थी, खत्म। उसको वहीं के डिसॉल्व करो, उसको आगे मत बढ़ाओ। उसमें ईगो अपनी भी मत लाओ, ईगो सामने वाले की मत लाओ। कॉन्टेम्पलेट तो करो, सेल्फ रिफ्लेक्ट तो करो, सेल्फ डिस्कवर तो करो कि अगली बार अगर मैं दोबारा ऐसा कुछ होगा, दोबारा रास्ता भूल जाऊंगा, गलत रास्ते पे चले जाऊंगा, आई विल नॉट रिएक्ट द वे आई रिएक्टेड। दैट इज माय लर्निंग लेसन। आई विल रिएक्ट इन अ न्यू मैनर, इन अ डिफरेंट मैनर, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम मैनर। क्योंकि अगर मैंने फिर वही करना शुरू कर दिया, फिर मैं लूप में आ गया, जिसे हम गोविंद से बात कर रहे थे। लूप में मत फंसो।
मतलब नई गलतियां कर सकते हैं, बार बार पुरानी गलती को थोड़ा ना करेंगे। अगर एक बार एक बात पे गुस्सा आता है तो बार बार को ट्रिगर करो, मैं उसी बात पे गुस्सा होता रहूं, तो मतलब मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में और उसको मजा आ रहा है भाई मुझे पपेट बना के। आई कांट लेट अदर पर्सन डू दैट। इतना ही सिंपल है। ओके, थैंक यू सिमरन जी। एक बात पूछूं आपको? अब इससे पहले भी आपने पूछ ली थी बात, पूछिए। नहीं नहीं, एक दूसरे अच्छा मतलब पूछे। मैंने फर्स्ट आपको आप सिने स्टार की खोज में थे पहले। यस, जी सिने स्टार थी, हाँ, 2004। तो फिर सबसे फैन नंबर 1, क्योंकि मैं उस टाइम से मैंने आपको मतलब वॉच किया अरे है। वो तो बहुत साल पहले की बात है, 15-16 साल, 17 साल तो पहले मैं की बात। कंफ्यूज हो रही थी, मैं आपके I पूछूंगी was in वहाँ Zee Cine कि नहीं, Stars, मैंने yes. देखा Me and था। my wife, we both were in Zee Cine Stars की कोच। हम दोनों Yes, से। yes. हाँ, शायद आपका फर्स्ट होगा जोड़ा। फर्स्ट रियलिटी शो एंड फर्स्ट वर्क, पहला ही था, सब चीजें शुरुआत ही वहीं से हुई है हमारी। Thank you so much. Thank you so much Samrat ji, thank you. Okay, moving on quickly to Salim, Anamika, Rakesh and then समाधान। आपने सवाल पूछ लिया था कि पूछना है अभी? नहीं पूछा सर। अच्छा सॉरी, ओके, क्विकली मूव टू यू फर्स्ट। आप बताइए क्या सवाल है आपका? समाधान। Sir, it's related to the earlier question. Same spontaneous reaction to anything, like I'm working on something and I get a ping, और कुछ काम कर रहा हूँ और कोई किसी ने दूसरा काम बोल दिया, तो it's not like what you are currently answering, like you are asking someone to stop and patiently asking to next time, but मेरा reaction, spontaneous reaction बहुत खराब रहता है। I गुस्सा हो जाता हूँ, but it's not ideal situation, but after 10 minutes और आधे घंटे बाद realize होता है कि it's not a good thing you have done, and वो ज़्यादा ruin करती है कि we are not good human, we are like गुस्सा हो जाते हैं। I understand, but हमने कभी ये समझने की कोशिश की है, थोड़ा सा और एक डीपेस्ट लेयर में चलते हैं। ये तो समझ में आ गया कि अवेयरनेस रखनी है और सेल्फ कॉन्टेम्पलेट करना है और वापस आ जाना है, करेक्ट? तो उसी गलती को नहीं दोहराना, इतनी तो बात हो ही चुकी है हमारी आज, इतना तो समझ लिया ना आपने। एक लेयर और जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमने कभी अपने अंदर से जाना है कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आ कहाँ से रहा है और क्यों आ रहा है? क्या ट्रिगर करता है जिसकी वजह से इमीडिएटली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आ जाता है? क्या हम ऑलरेडी हर्ट हैं और हल्का सा को ट्रिगर करता है तो वो हर्ट हो जाता है, या हमारी सेल्फ वर्थ फ्लो है तो कुछ ट्रिगर करता है, हमें लगता है अपने बारे में और बुरा लगता है, हम फट से रिएक्ट कर देते हैं? आप समझे? आई एम गिविंग यू द पॉसिबिलिटीज। आई एम सेइंग व्हाट इज इट दैट इज कॉजिंग दैट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? वी नीड टू नो द डीपेस्ट लेयर एंड द डीपेस्ट रूट ऑफ इट। खुद से पूछो कि कहाँ है। कोई फियर है जिसको हम गायब करते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा आ जाता है? कोई हर्ट है जो यहाँ तक भरे पड़े हैं? जरा सा किसी ने कहा कि दाल में नमक कम है, समझे? तो बात पुरानी है जो 10 साल से चल रही है, और किसी ने कहा कि दाल में नमक कम है और दाल के नमक को हमने इतना बड़ा बना दिया, करेक्ट? जबकि बात कुछ और होती है हमेशा। तो सोचो, पूछो अपने आप से, बहुत बारी खुद के अंदर से जवाब मिल जाते हैं कि एक्चुअली दाल में नमक प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि 5 साल पहले, 25 दिन पहले या 3 महीने पहले आपने मुझे कह दिया था, वो बात अभी तक मेरे जहन में और मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, मैं डिसॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए जब दाल में नमक कम होता है तो ट्रिगर हो जाती है वो बात और मैं उस बात को आप पे थोप देता हूँ। सोचो, पूछो, जिस दिन वो थोड़ा सा गहराई में जाके वो रूट मिल जाएगा ना, तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब मिल गया ना। इट्स लाइक जब मुझे पता लग गया कि प्रॉब्लम कहाँ है तो डिसॉल्व करना आसान हो जाता ना। तो मुझे पता ही नहीं तो मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, चोट यहाँ पर है, मलम यहाँ पे लगा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे पता है चोट यहाँ पर है तो मलम भी यहीं पर लगेगी ना, यहीं से डिसॉल्व हो जाएगा, तो फिर आगे हाथ तक पहुंचेगी नहीं बात। सोचो। Sir, second question is how to improve the communication skills. Even if I have knowledge or everything I have, but I take a time to speak to the person, और थोड़ा सा मिलने में टाइम लेता हूँ, 10 मिनट, 5 मिनट, और इवन गिविंग अ प्रेजेंटेशन टू टाइम। तो उसमें दिक्कत क्या है मुझे बताओ, किस तरह की? क्या हम उस कम्युनिकेशन स्किल, तो एक चीज है, एक तो है कम्युनिकेशन स्किल्स का जो एक पैरामीटर बना हुआ है, करेक्ट? पैरामीटर समझते हो ना, कि हमने एक मनगढ़ंत बना रखा है कि कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए। 10 लोगों को हम देख लेते हैं और इनका कम्युनिकेशन हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, करेक्ट? एक फिक्स्ड नोशन ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता है कम्युनिकेशन तो तब भी हो सकता है जब मैं अपनी जबान से कोई शब्द ना निकालूं और आप अपनी जबान से कोई शब्द ना निकालें, और आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपकी आंखें पढ़ लूं और आप मेरी आंखें पढ़ लें, तो कम्युनिकेशन नहीं है ना, करेक्ट? तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि किसी फिक्स्ड नोशन में नहीं जाना। ये फिक्स्ड नोशन ना हमने बांध लिए हैं और हम फिर वैसा ही खुद को बनाने का प्रयास करते हैं।
जैसे किसी ने उस दिन कोई बात हो रही थी तो मैंने कुछ ऐसे बोला भी था और वीडियो भी बना था कि लॉट ऑफ, मैं कुछ देख रहा था तो मैं हंस पड़ा, किसी का बता नहीं सकता, कुछ देख रहा था तो उसमें स्ट्रैटेजीज हाउ टू बिकम चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव, स्ट्रैटेजीज थी कि 10 तरह की स्ट्रैटेजीज हैं हाउ टू बिकम अट्रैक्टिव। क्या स्ट्रैटेजीज कभी किसी के काम आई हैं? आ सकती हैं, सोचो। ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहा कि नीट एंड क्लीन मत रहो, ये तो बड़ा बेसिक प्रेरिक्विजिट है कि मतलब साफ सुथरे तो रहो एटलीस्ट, ये तो बहुत बेसिक है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि वो स्ट्रैटेजीज ना काम नहीं आती हैं, उससे भी ज्यादा अगर आपको कोई काम आता है तो मुझे लगता है कि आपके अंदर आप हो क्या एक्चुअली। हैव यू फाउंड योरसेल्फ? हैव यू अंडरस्टूड योरसेल्फ, हु यू आर, व्हाट यू वांट आउट ऑफ योर लाइफ? आपके बेसिक ट्रेड्स क्या हैं? या फिर how do you express yourself? The way I express yourself, you may not be able to do it, Samadhan. But the way you express yourself, I may not be able to do it. And that is the most beautiful part about life. और ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो जो आप बात कर रहे हो बात सही कर रहे हो, जो मुझसे भी बात कर रहे हो, जो हम बात सुन रहे हैं आपकी, सही तरीके से करो। बस ये अगर आप 5 मिनट लेते हो तो 5 मिनट लेते हो, प्रॉब्लम क्या है उसमें? आप समझे? हम ये क्यों सोचें कि जो दूसरा इंसान है वो आधे सेकंड में ही जवाब दे देता है और मेरे को 5 मिनट लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप 5 मिनट लो, लेकिन क्या वो जवाब जब निकल रहा है तो उसमें स्थिरता है या सटीकपन है या सही बात, सही शब्द निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे? आप समझे? हम जजमेंट में नहीं जाते कि अगर कोई 2 मिनट ले रहा है तो मतलब वो स्लो है, और कोई 30 सेकंड में जवाब दे देता है तो बहुत फास्ट है, उसका दिमाग बहुत शार्प है। किसी का बहुत शार्प चलता है, लेकिन जिसका बहुत तेज तेज दिमाग चलता है उसको नींदें भी नहीं आती ना रात भर, वो इंसोम्नियाक भी हो जाता है। जिसका स्लो चल रहा है उसको नींद भी तो अच्छी आ रही है, वो सो भी तो पा रहा है जीवन में। जिसके कॉन्स्टेंटली स्पीड पे दिमाग चल रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसा कोई बटन है कि स्पीड पे सुबह से लेकर रात तक दिमाग चलेगा, रात को जब नींद करनी होगी तो आराम से दिमाग सो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका कंडीशन पैटर्न है दिमाग का, उसको नींद में दिक्कतें होंगी, परेशानी होगी, इंसोम्निया होगा, एंजाइटी, पैनिक अटैक, स्ट्रेस, जरा सा कुछ हो जाएगा, गोल 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 दिमाग घूमेगा। तो आई एम सेइंग फोकस। किसी से सीखना हमेशा अच्छी बात होती है, किसी से भी सीखो कुछ भी, अपने अंदर चीजों को समझते रहो, ढालते रहो, बट सिर्फ फिक्स्ड नोशन में मत जाना। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? The fixed notion how everyone in the society or everyone around our environment has said that this is the way a communication has to be and this is only right communication, this is not the right communication. Correct, simple. As long as you can speak clearly, as long as जो आप बोल रहे हो उस बात में सच्चाई है, उस बात में सहीपन है और वो बात आगे तक पहुंच रही है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे इतनी सारी चीजें होती हैं, वीडियोस बनते हैं, तो बड़ा सिंपल है यार। मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ इतना ज्यादा, मतलब पढ़ता इन द सेंस ऐसा नहीं है, मतलब जो एक लाइन अगर मुझे कुछ मिल जाते तो मैं वीडियो बनता रहता है अपने आप। वो क्यों बनता है? बिकॉज इट कम्स आउट ऑफ डीपेस्ट लव एंड कंपैशन, दैट्स इट। उसमें और कुछ भी नहीं है, उसमें ना कोई इस तरह की कोई बनावटीपन है, ना उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज हैं कि वीडियो का बिगनिंग ऐसा होना चाहिए, एंड ऐसा होना चाहिए, मिडिल ऐसा होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे तो खुद नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे अभी भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मन में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। लेकिन क्या है, क्योंकि उसमें ऑनेस्टी है, उसमें एक डीपेस्ट केयर फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अब उसको आप प्रेम का नाम दे दो और सच्चाई का नाम दे दो, बस इतना ही है। जिस दिन प्रेम और सत्य जीवन में आ जाएगा ना, उस दिन किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सब ऐसे वो ऊपर के होता है ना जूता पॉलिश करने के लिए, वो है बस, और कुछ नहीं। लेकिन जूता ही जब खराब हो तो जितना मर्जी पॉलिश कर लो बेचारा टूट ही जाएगा। आप समझे? लोग क्या करते हैं, सड़े हुए एप्पल को पॉलिश करके बेचते हैं। अरे एप्पल तो साफ सुथरा हो, उसके अंदर तो कीड़ा ना लगा हो, वो इम्पोर्टेंट है लाइफ में पहले। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके शीतल जी हेलो बोलिए। सर। वैशाली जी 1 सेकंड रुकते हैं, फिर शीतल जी के पास आते हैं, फिर आपके पास आते हैं, बोलिए। ओके सर। हेलो भैया। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी भैया, मुझे ये पूछना था कि आपके लाइफ में कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं ना, जिनसे आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि वो आपकी जी। एनर्जी बहुत सारी ले लेते हैं। पर उस टॉक्सिक लोगों के लाइफ में और हमारी लाइफ में कुछ कॉमन लोग होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, उन कॉमन लोगों की वजह से बहुत सारी, मतलब वो कॉमन है आपके लाइफ में तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि आपको उनके
इंटरेक्शन में आना पड़ता है जिनसे आप दूर रहना चाहते हैं। तो उस करेक्ट है, वजह से ना लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती, मतलब मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ। और करेक्ट है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उनकी वजह से आपका झगड़ा आपके कॉमन लोगों से हो जाता है। तो क्या हम उन कॉमन लोगों को जो बीच में है उनको बोल नहीं सकते कि हम दूसरी तरफ की बात ना सुनना चाहते, ना करना चाहते, ना महसूस करना चाहते हैं? अगर आपका रिलेशनशिप उनसे है तो आप रखें, हम आपसे उस तरह का बात नहीं करना चाहते। नहीं, वो तो मैंने कई बार डिस्कस भी किया है वो, बट वो एक ऐसी चीज आ जाती कि दैट वी आर फैमिली, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, दैट आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आप इस फैमिली का पार्ट है, या मतलब ये फिर समझा नहीं हमारी मैं। अपब्रिंगिंग का पार्ट नहीं है कि मतलब अगर मेरी फैमिली में कोई है तो आप ऐसे बिल्कुल बातचीत करना बंद नहीं कर सकते उनसे क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो रही है उनसे। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कंप्लीट बातचीत आपको लग रहा है कि फैमिली की तरफ से थोड़ा प्रेशर है कि बिल्कुल ही आप साइड लाइन्ड और नॉन एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते, तो बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा फेक मुस्कुराहट दो, हेलो बोलो, निकल लो साइड में, खत्म कहानी। नहीं, मैं वही करती हूँ, बस हाँ, आधी तो बस और इंटरेक्शन क्या। ही रखती हूँ। हाँ, बस देखो, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला टॉक्सिक है, आइडियली तो ये होता है कि एब्सोल्युटली नो कम्युनिकेशन इन द सेंस, तो कि आपका जीवन भी स्थिर रहे, उनका भी स्थिर रहे, आप भी सहज रहें, वो भी सहज रहें, और बार-बार वो टॉक्सिसिटी आए ना। लेकिन अगर फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर और कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि अब उनको नॉन एक्जिस्टेंट नहीं कर सकते, तो हेलो बोलो और साइड में निकलो, खत्म करें, मतलब उनके साथ कोका कोला पीने की जरूरत नहीं है ना। आप समझे मेरी बात? कि मतलब उसको उतना ही रखो, बस जितना 1% 2% ऊपर ऊपर के लिए चाहिए। अगर आपको वो भी इसलिए क्योंकि इस घर का प्रेशर, और आप घर पे फिर अब हम ज्यादा उलझेंगे तो घर वालों की बहुत सारी बातें होती हैं, फिर उसमें उलझ से चले जाएंगे, फिर वो आपको कुछ कहेंगे, फिर आप उनको कुछ कहोगे। तो अगर उसको थोड़ा सा सहज रखना है, वैसे तरीका सही नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक समझ लो एक टूल की तरह है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऊपर ऊपर से कर दे और उसके बाद निकल गए, एंड डोंट गेट इनटू दैट। क्योंकि अगर हम ज़्यादा फिर हम करना शुरू करेंगे तो फिर हम खुद ही फँसते चले जाएँगे। तो अगर उसको बिल्कुल ही, जैसे वो दूर से कहते हैं ना, कुछ दूर के रिश्तेदारों को दूर ही रखो, तो दूर-दूर से ही निपटा दो और खत्म करो, और क्या, जीवन अपना सुलझाओ। ओके। जी भैया। हाँ, थैंक यू सो मच। वैशाली जी बोलिए। हेलो सर। हाय, बोलिए। जी सर, मैंने आपके ये पहले सुना अभी जो क्वेश्चन आंसर के सफरिंग, जिसको हम बोलते हैं जब अपनी मन की बात उसको बुरा ना लगे या वो छोड़ के ना चला जाए, एक्सेट्रा। बट वो आपने बोला कि जब कोई और इंसान आपकी लाइफ में आपकी आता है आवाज़ कट तब रही है। वो सब पास्ट भूल जा रहा है, बट हील करें। सॉरी, आपकी आवाज़, आई जी थिंक आप सर, ट्रैवल अब कर रही आई? हैं, इस वजह से आवाज़ कट रही है। अभी आइए, बोलिए। हेलो। जी मैं कार में हूँ सर। हाँ, आई थिंक इसी वजह से आवाज़ नहीं आ रही है पूरी, जी क्योंकि सर, नेटवर्क तो इन बोलिए, बिटवीन बोलिए। जो हेलो हाँ, बोलिए। हेलो हाँ जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आई थिंक आप वीडियो ऑफ कर दीजिए सो दैट आई कैन लिसन टू यू। उससे पहले से इन बिटवीन जो नहीं, एक्चुअली आवाज़ नहीं आ पा रही है। हाँ जी, वैशाली जी, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, सिर्फ ऑडियो में बोलिए, तो शायद कभी-कभी नेटवर्क का इशू हो सकता है। बोलिए। कैन यू हियर मी? जी सर, बोलिए। आपने वो बोला था कि यस आपने बोला था कि हम अगर कोई इंसान को बात बोल दे या वो हर्ट करके चला जाए या छोड़ के चला जाए, ठीक है, वो छोड़ के चला जाए, उसके आपने बोला कि तो कोई नया इंसान आ जाएगा आपकी लाइफ में, राइट? करेक्ट है। तो इन बिटवीन जो सफरिंग और पेन होता है, तो उसको कैसे हील करें? आप कह रहे हैं कि एक इंसान के जाने ये के बाद एक और सवाल दूसरे है। के, वन सेकंड, एक करके करते हैं ना। आप कह रहे हैं कि किसी इंसान के जाने के बाद और दूसरे के प्रवेश करने से पहले जो सफरिंग है, करेक्ट? यही कह रही हैं आप? देखिए, ये थोड़ी बहुत पेन से गुजरना पड़ता है। वो इसलिए बड़ा सिंपल है ना, जब किसी के साथ जुड़ाव होता है, ऐसे कागज दो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और काफी जुड़ाव है एक दूसरे के साथ, और जब ये कागज थोड़ा सा फटता है, करेक्ट, जब हम इसको अलग करते हैं तो फटता है ना कागज, जब फटेगा तो थोड़े से निशान एक दूसरे के ऊपर रह जाते हैं कागज के, राइट? ऐसे ही जब किसी के साथ जुड़ाव होता है, जब जुड़ाव टूटता है तो उसके रेजिड्यू, मतलब उस इंसान के साथ जो समय बिताया, उसके रेजिड्यू के इंप्रेशंस हमारे ऊपर छूट जाते हैं। उसमें थोड़ी बहुत पेन एंड सफरिंग होती है, वो तो होगी क्योंकि जुड़ाव था। अगर जुड़ाव नहीं होगा तो पेन नहीं होगी, अगर जुड़ाव है तो थोड़ी बहुत पेन होगी, उससे तो गुजरना पड़ता ही है।
ऑल आई एम सेइंग इज वो जो पेन का रेजिड्यू है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, खुद को मौका देते हैं, इंसान को मौका देते हैं, जीवन को मौका देते हैं, तो अपने आप कोई ना कोई आएगा किसी ना किसी प्रकार से जो हील करके आपको आगे बढ़ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट जब तक कोई नहीं आता या जब जब हम अटके बैठते हैं, थोड़ी बहुत पेन, थोड़ी बहुत सफरिंग से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि जब जुड़ाव होगा और जुड़ाव टूटेगा, अब हार्ट ब्रेक होगा, अब या तो दिल लगाओ या नहीं, जब दिल लगाओगे, where there is love there is going to be a heartbreak। हम ये सोचें कि प्रेम तो है, लेकिन मतलब इट्स लाइक अ रोज विल कम विद इट्स थॉर्न्स। आप समझे? गुलाब का फूल की जो पंखड़ियां होती हैं, उसके साथ कांटे भी तो आते हैं। इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। अगर सूरज है तो चंद्रमा भी होगा, डे है तो नाइट भी होगा, सुख है तो दुख भी होगा, अगर लव है तो प्रेम है तो हार्ट ब्रेक भी होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होगा तो बर्दाश्त करना। जब प्रेम में इतना खुश हो सकते हैं और ऐसा लगता है वाह, बबल एंड लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, तो वी कांट एक्सपेक्ट दैट बबल विल स्टे ऑल योर लाइफ। इट मे ब्रेक, इट मे हैव इट्स अप्स एंड डाउन्स। आप आगे बढ़ते चले जाओ, और अप्स एंड डाउन्स की वजह से तो ग्रोथ है प्रेम में भी। क्या लाइफ ऐसे चलती रहेगी तो ग्रोथ है, या लाइफ ऐसे ऐसे चलती है तो ग्रोथ है? क्योंकि जब नीचे गिरते तो समझ में आता है कि ऊपर कैसे उठना है, कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ गलत रिएक्शन हो गया, कहाँ कोई गलत बोल दिया। आप समझे? यू स्टार्ट ग्रोइंग। ग्रोथ हैपेंस थ्रू पेन एंड सफरिंग। जब हम जिम में जाते हैं और अगर एक किलो का डंबल मैं सारा दिन बैठ के उठाता रहूंगा ऐसे, तो क्या बॉडी बन जाएगी? या 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, फिर बॉडी के मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, यहाँ पे पेन होता है, बॉडी कहती है कि नहीं यार, आई एम इन पेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो गुड पेन है या बैड पेन है या सोर पेन है या कुछ भी है, बट द बॉडी विल रिक्वायर इट टू ग्रो। The cells will require, old cells will die and the new cells will come because you're pushing the body। तो थोड़ी बहुत तो होगी, okay, embrace the pain, थोड़ा बहुत क्या दिक्कत है, okay। जी सर, और एक आपने जो बोला कि रिस्पॉन्स जब हम बात करते हैं तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, राइट? रिस्पॉन्स और इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स करना है, थोड़ा साइलेंस का गैप रखना है। इनके बीच में जो पतली सी दीवार होती है रिस्पॉन्स और रिएक्ट में वो अच्छा, थोड़ा उसमें दीवार नहीं होता, उसमें धागा है। उसमें कोई दीवार नहीं है, वो धागा जुड़ा हुआ है। सुनिए, ये है रिएक्शन, ये है रिस्पॉन्स। आप मुझे देख सकती है ना? अब आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया मुझे। ये है रिएक्शन, ये है रिस्पॉन्स, इसके बीच में साइलेंस का गैप है। हम क्या करते हैं, जैसे को कुछ ट्रिगर करता है ऐसे रिएक्शन चल पड़ता है। मैं कह रहा हूँ जैसे किसी ने ट्रिगर के रिएक्शन को रोक लो, थोड़ा सा 10 सेकंड रुक जाते हैं और उसके बाद शांति से स्थिर दिमाग से फिर उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। वो बात क्या कह रहा है, उस बात का क्या मतलब है, आप क्या सोचते हैं, फिर वो बात कहो। तो जब आप वो बात कहोगे तो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आएगी, उनको भी समझ में आएगी, आपको भी समझ में। अक्सर बहुत बड़ी झगड़ा पता है किस बात पे होता है? सामने वाला कहता है ये एप्पल है, आप कहते हैं ये सेब है। समझे? सामने वाले ने कहा ये एप्पल है और आपने कहा ये सेब है। एक्चुअली दोनों एक ही हैं। सेब इज एप्पल एंड एप्पल इज सेब। बट होता क्या है, क्योंकि हम रिएक्शन में आते हैं ना, तो हम सुनते नहीं दूसरे की बात, ना वो आपकी बात सुन रहे हैं ना हम उसकी बात सुन रहे हैं। तो बात कभी कभी बहुत बारी झगड़े में ऐसा होता है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। करेक्ट? तो इस वजह से गुस्से में, क्योंकि गुस्से में ना कभी सुनाई नहीं देता, हमेशा ध्यान रखना। गुस्से में ये कान के सेंसेस सबसे पहले बंद हो जाते हैं। गुस्से में क्या होता है, मैं अपनी बात कह दूं पहले, मुझे इसको हर्ट करना है, मुझे अपने फियर को प्रोटेक्ट करके कुछ बोलना है। अरे सामने वाला कुछ कह रहा है, शायद वो वही बात कह रहा है जो आप कह रहे हो, बस वो अलग तरीके से कह रहा है। सुन तो लो, सुन लोगे तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। आप समझे मेरी बात? तो रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में साइलेंस का गैप का मतलब ये, जस्ट स्टे स्टिल फॉर 10 सेकंड। थोड़ा सा रुक जाओ, इमीडिएटली मत करो, उस मोमेंट में मत करो। 10 सेकंड रुक जाओ, 15 सेकंड रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ कि इस बात का जवाब मैं 2 मिनट के बाद दूंगा या दूंगी। अभी नहीं बोलना मुझे, अभी मुझे कोई बात करनी नहीं, रुकते हैं 10 मिनट। फिर अपने आप दिमाग कॉन्टेम्पलेट करता है, उसने क्या कहा था, मैंने क्या कहना है। तो अपने आप धीरे धीरे आप उस चीज तक पहुंच जाते हो। फिर आप उनको भी आपकी बात समझ में आती है, क्योंकि गुस्से में जब उनकी एनर्जी शांत हो जाती है वो भी सुन पाते हैं। जब एनर्जी शांत हो जाती है ना, तभी तो सुन पाओगे। जब अंदर से ऐसे आग बबूले हो रहे होगे, अंदर इतनी एनर्जी फूट रही होगी, तो एनर्जी कहते हैं पहले रिलीज हो जाए किसी तरह। तो बोल दो पहले सब चीजें, बाद में सुनेंगे। I'm saying just dissolve it। और वो बहुत मोमेंटरी होता है, क्योंकि माइंड इतनी जल्दी पकड़ लेता है उन सब चीजों को, उसके बाद धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। बहुत बारी ऐसा होगा, एक थॉट आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा है, आपको लगा अभी एक्शन लेना, अभी एक्शन लेना,
but due to some reason you can't take an action. 15 मिनट के बाद आपको बात ही भूल जाती है, या आधे घंटे के बाद उस बात का कोई महत्व ही नहीं रह जाता आपके लिए। होता है कि नहीं होता? क्योंकि माइंड उस समय क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है। माइंड वांट्स टू टेक एन एक्शन, योर ईगो वांट्स टू प्रिक एंड टेक एन एक्शन। आफ्टर हाफ एन आवर द ईगो डिसॉल्व्स। उसको कुछ और मिल जाता है पकड़ने के लिए, वो फिर कुछ टीवी देख लेगा, कोई मूवी देख लेगी, कोई पिक्चर देख लेगी, कोई ऑडियो सुनेगी, उसमें उलझ जाएगी, उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसा होता है। ओके वैशाली जी। सर तो जी जी बोलिए। सर उसके जो 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 हम बात बोलते हैं, राइट, सामने वाला बोलता है, और कभी कभी इतना सामने वाला बोलता है कि अपने को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। हाँ आई नो, गुस्सा आ जाता है, अंडरस्टैंडेबल। या तो उस गुस्से में रिएक्शन निकल आता है ऑन द स्पॉट। देखिए इसमें बस इतना है, देखो सामने वाला कुछ बोल देता है तो वो गुस्सा आ जाता है, मैं समझता हूँ इस बात के लिए। इस बात के लिए भी मैंने एक्चुअली पहले भी कहा, एक समाधान को भी कहा कि वो गुस्सा क्यों आ रहा है। कभी हमने डीपेस्ट लेयर में जाके देखा है कि या वो पुरानी हर्ट है, इस वजह से ट्रिगर हो रहा है या हर्ट हो रहा है, या फिर कोई फियर है हमारे अंदर, डर है जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं और गुस्सा हो जाता है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत बारी हम यहाँ तक भरे होते हैं तो जरा सा किसी ने ट्रिगर किया तो गुस्सा हो जाता है, या बहुत बारी हमारे अंदर डर होते हैं और जरा सा किसी ने ट्रिगर किया तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि डर में भी गुस्सा आता है। जब दो लोगों के आपस में झगड़ा हो जाता है रोड पे, तो दोनों डरे हुए होते हैं, उनका पुराना किसी से कोई हर्ट नहीं है, तो वो क्या करते हैं फियर में ना, अरे मैं ये कर दूंगा, अरे मैं वो कर दूंगा, अरे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा कर दूंगा। आप समझे? बट अंदर से तो डर लगता है ना कि मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने अगर एक थप्पड़ मारा तो दूसरा भी तो मारेगा ना। लेकिन हम बोलते रहते हैं, जैसे रोड पे जब लड़ाई होती है तो लोग बोलते बहुत हैं तो मतलब क्या है? डर है ना। जिसमें हिम्मत है मारने की वो बोलेगा या मार देगा? सोचो। मार देगा। बस इतना ही सिंपल है। जो डरा हुआ होता है ना वो 50 बातें बोलता रहता है। कभी रोड पे झगड़ा किसी का देखा हो तो ऐसे ही होता है, मैंने बहुत देखे दिल्ली में तो बस इतना ही सिंपल है। तो इसका मतलब ये वो डर है। अब डर को हम दिखा नहीं सकते किसी को, तो हम क्या करते हैं, गुस्से का उसको मास्क कर देते हैं। आवाज ऊंची हो जाती है, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, अंदर से डरे हुए हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि पता है कि कुछ कर तो सकते नहीं, तो चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। अक्सर जो लोग गुस्सा करते हैं वो बहुत डरपोक होते हैं, कि जो थप्पड़, मतलब ये गलत एग्जांपल हो जाएगा, मतलब अगर रोड फाइट में अगर कोई मार देता तो वो डरा हुआ नहीं है, जो डरा हुआ वही गोल गोल घूमता रहता बस बातों के अंदर। अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल समझे तो बहुत ज्यादा हमारे अंदर डर है, हम उस डर को मास्क करते हैं एंगर से और कुछ नहीं। तो अपने अंदर झांक लीजिए कि वो फियर की वजह से आ रहा है या हर्ट की वजह से आ रहा है। जब समझ में आ जाएगा तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो इंस्टेंट रिएक्शन अपने आप नहीं आएगा, क्योंकि अब आपको अपने अंदर का वो मिल गया, स्क्रू मिल गया, कि समझ में आ जाता है, पेच मिल जाता है ना, जैसे हमारे को एक पुर्जा मिल जाता है कि हाँ यहाँ से गड़बड़ हो रही थी, द मोमेंट आई हैव अंडरस्टूड दिस, अब गड़बड़ नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके एवरीवन, बाकी हम अगले संडे करें, ऑलरेडी 2:30-3 बज रहे हैं। लेट्स डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन नेक्स्ट संडे विल डू। हाँ जी दर्शना जी बोलिए। Okay, sir. Thank you, sir. First of all, I would like to really thank you, because these sessions are really helping people heal and grow. Thank you. It has actually served the purpose of we share and we grow. Actually, That's sir. very kind of you. Thank you. And for the last 3 weeks, I have been every day I'm attending these sessions, and it is really helping me a lot. For example, this 5M transformation, it is really. And I just wanted to share one thing is that I work in a primary school, and I feel like overthinking session. Most of my friends have already got government jobs, so I feel that I feel inferior sometimes. You know, this overthinking revolves in my head that okay, I'm just a private primary school teacher, earning a little bit of amount, and they are earning so much, getting government jobs. You know, settled in their life. Although I am also settled, like I am also married. I also have a wonderful family, supportive husband. Those things are good, but somewhere deep inside, I feel this inferiority complex in me that I, being a
above average student, and they being below average student, they are more successful in life as compared to me. Correct. So this comparison haunts me sometimes. I understand. तो उसके कुछ रीजंस भी होंगे। वो रीजंस क्या हैं? अगर आप कहते हैं कि आप अबव एवरेज थे और आप आज उस सतह पे नहीं जिस सतह पे आप खुद को सोच रहे थे, तो कोई अगर बिलो एवरेज था, तो उनके और आपके बीच का कारण क्या रहा? That I don't know, sir. I am working every day. नहीं, देखो मेरी बात सुनो। Don't know, sir. गड़बड़ हो जाती है दर्शना जी। गड़बड़ ये है, हम सिर्फ रिजल्ट कंपेयर कर रहे हैं, हम कारण तो समझ नहीं पा रहे, हमें इफेक्ट को देख रहे हैं, कॉज क्या है। बहुत बारी मुझे नहीं पता वो कॉज क्या हो सकता है, कि कॉज हमारे अंदर ये हो सकता है हम अपने डरों के चक्कर में बाहर नहीं निकल पा रहे जीवन से। हो सकता है वो डरते ना हो जीवन में, हम सिर्फ इफेक्ट देख रहे हैं। हमने पास्ट से एक डिनोमिनेटर उठाया और उससे कंपैरिजन शुरू कर दिया, पास्ट और प्रेजेंट का। लेकिन उसके बीच में क्या हुआ 10 साल के बीच में? उस 10 साल के बीच में शायद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, शायद आप डर गए, शायद आप आगे नहीं बढ़ पाए, शायद उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आई और उन्होंने लपक लिया, उन्होंने ग्रैब कर ली वो अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो क्या है वो रीजन जानना जरूरी है, क्योंकि वो रीजन से आपका आगे के 10 years या 20 years बेटर होंगे। सिर्फ But sir, I have worked really very hard. I still am trying. नहीं दर्शना जी सुनिए, but still not able to crack any exams। कोई मेट्रिक नहीं है, वर्किंग हार्ड मेट्रिक नहीं है, आप समझ नहीं रहे। वर्किंग हार्ड तो हर कोई कह सकता है कि मैं भी वर्क हार्ड कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, आई एम सेइंग बहुत सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं, शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ एक नजरिए से देख रहे हैं कि हम सुबह जाते हैं, रात तक काम करते हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम ऑनेस्ट भी, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, दूसरा आगे बढ़ रहा है। आई एम सेइंग रीजन तो समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या हुआ या वो आगे कैसे बढ़ गए। कुछ ना, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, कुछ तो एक कारण होगा, कुछ तो ऐसी चीज होगी जो उन्होंने सही कर ली है और जब आपके पास वो आई होगी तो आपने सही नहीं करे। In the sense जब when the opportunity or anything must have knocked your door, हो सकता है कि उस समय पे मैंने वो डिसीजन सही नहीं ले पाई हाइपोथेटिकली, या मैंने वो सही एक्शन नहीं लिया जिसकी वजह से एक रिजल्ट आ सकता था। वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता ना। अदरवाइज हम सिर्फ हवा में हैं, सिर्फ की कंपैरिजन हो रहा है। I'm saying let's find out the reason. What is the reason? Because that reason is going to help you transcend for your next 20 years. Because the moment you understand the reason, जैसे मेरे को बहुत सारे टॉप शोज ऑफर हुए थे 2007-8 की बात है। बहुत टॉप प्रोड्यूसर्स मेरे को टीवी शोज के लिए ऑफर करते थे, लेकिन मुझे टीवी नहीं करना था, मैं अपने फितूर में था। मुझे था टीवी करूंगा तो यार फिर वो फिल्मों का मौका मिल जाएगा, छूट जाएगा, ज्यादा ओवर एक्सपोज हो जाओगे, ऐसी सोसाइटल कंडीशनिंग थी। जो मैंने शोज छोड़े वो औरों ने किए, जो औरों ने किए वो शो सुपर हिट हो गए। वही शो जब सुपर हिट हो गए तो उन्होंने फिल्में भी कर ली और मेरे को घूम के आना पड़ा गोल। समझे आप बात? ऐसे है जीवन। तो समझो एक्चुअली क्या हुआ। हम क्या समझते हैं, अरे यार मैं इतना अच्छा एक्टर था, मैंने इनसे ज्यादा मेहनत की और ये लोग आगे बढ़ गए, क्योंकि हम फंस गए कहीं। मैं कह रहा हूँ कि उस अटकन को समझो, इस फसन को समझो। जैसे समझ जाओगे ना तो आगे के 20 साल बेहतर हो जाएंगे। अब जो हो गया उसको नहीं बदल सकते। हो सकता है यहाँ से आपके अंदर कोई चीज ठीक हो गई तो आपको ऐसी लीप ऑफ फेथ ले लो जो वो ना ले पाए। ये समझो। नेक्स्ट क्या करना चाहिए सर? नेक्स्ट व्हाट शुड आई डू? नेक्स्ट व्हाट शुड आई डू? आई थिंक अगर मैं फिर भी कहूंगा, अगर आप समझ सकते हो ये रीजन क्या है, कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन that you think you are left behind and what is the reason they have gone ahead. Find out the reason. That reason is going to help you transcend. कि जैसे मुझे समझ में आ गया, मेरे अंदर फियर था कि मुझे टीवी नहीं करना, टीवी करूंगा तो ओवर एक्सपोज हो जाऊंगा, ओवर एक्सपोज हो जाऊंगा तो फिल्में नहीं मिलेंगी, राइट? एक फियर था। जैसे मुझे समझ में आ गया कि कोई रास्ता है ही नहीं तय, कोई कुछ भी कर सकता है, जो टीवी कर रहा है वो फिल्में भी कर सकता है, जो फिल्में कर सकता है कल को टीवी भी कर सकता है, तो फियर ड्रॉप हो गया। जब फियर ड्रॉप हो गया तो जैसे जैसे काम आता चला गया, मैं करता चला गया और अपने आप रास्ते बनने शुरू हो गए। That is why, sir, now I have started preparing more for these exams. I am preparing more. I would still suggest, just do not lead your life comparing to them. Start finding what you actually want out of your life. Lot of times हम उस comparison में जाएंगे तो हम खुद से जो resonate करते हैं वो कर नहीं पाएंगे। हमें लग रहा है वो गवर्नमेंट जॉब है, वहां पे ज्यादा सक्सेस है। You never know, you may have something else which resonates with you more, और शायद उसका रिजल्ट 5 साल के बाद उनसे 50 गुना हो सकता है।
हो सकता है कि नहीं हो सकता? Of course, हो you never सकता know है। life. हाँ, जिंदगी बड़ी कमाल की चीज है, पलटी मार लेती है 2 मिनट में। One phone call and life will change. One phone call from Yash Raj to Ranveer Singh that you are doing Band Baja Barat changed his life. One phone call from Sanjay Leela Bhansali that you are doing Ram Leela for Ranveer Singh changed his life. This is how it happens. It can change. But start connecting what resonates with you, not what they are doing. वहाँ फंस जाओगे, फिर उनको ही डिफीट करने के चक्कर में रहोगे। मुझे लग रहा है अभी ईगो आ रही है, डिफीट करना है बस, और कुछ नहीं है। और उसमें इंफीरियरिटी, उसमें सुपीरियरिटी है, समझो जरा, इसमें फंस जाओगे, ये चक्रव्यूह है। What resonates with you? मेरे को रेजोनेट करता है शेयर एंड ग्रो, तो मैं करता हूँ ना। संडे टाइम निकलता है, चाहे शूट हो चाहे कुछ भी हो। करेक्ट, बिकॉज इट रेजोनेट्स विद मी। What resonates with you, start finding that. Okay? And रास्ता भी वहीं से निकलेगा, don't worry. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. भैया 2 Everyone, एक Please second. 2 Thank minutes. you. कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सलीम। भैया 2 मिनट। हाँ, कोई नहीं, सलीम सलीम। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन जी करो। भैया। हाँ, कोई नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो ऑन करो, मुझे दिखे आप। भैया हेलो, बोलो। थोड़ा पट्टी लगाया हो भैया प्लीज। अच्छा, कोई नहीं, ऑडियो में बोलो। I have applied. Okay, भैया, thank you for Most opportunity and I have learned very good wise lesson. Thank you. Okay, only few questions I have. First बोलो, of all, I बोलो। want to get rid of the catastrophizing, negative thinking, all trauma. That is my first question. I बड़ा want to कमाल get का rid of शब्द है, दोबारा बोलो। ये catastrophizing, तो भैया, all trauma. Catastrophizing what? भैया जैसे हम I want to get rid of the catastrophizing, all trauma and old pattern. बेसिकली पुराने जो पैटर्न्स और पुराने ओल्ड डीप रूटेड कंडीशनिंग में फंसे हुए, उसको कैसे डिसॉल्व करना है, ये कह रहे हो? हेलो। जी भैया। हाँ। हाँ भैया, हाँ। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। तो देखो क्या होता है ना, ओल्ड कंडीशनिंग। चलो घर पे ना एक एक्सपेरिमेंट करना सलीम। वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ग्लास ले लेना, उस ग्लास के अंदर गंदा पानी डाल लेना। ठीक है, ग्लास को भर लेना गंदे पानी से। ये हमारी ओल्ड पैटर्न कंडीशनिंग है, समझ लो, जिसमें हम फंसे हुए होते हैं। नेगेटिव थिंकिंग कह लो, ओल्ड पैटर्न कंडीशनिंग कह लो। उस ग्लास को कुछ देर के बाद ना, नल का समझते हो, टैप जहाँ से पानी आता है, किसी टैप के नीचे रख देना जहाँ से साफ पानी आए। थोड़ी देर में आप देखोगे ना, जैसे वो टैप के अंदर से पानी आना शुरू होगा ना, फ्लो से, अपने आप को कुछ नहीं करना, वो टैप से पानी आएगा, आता रहेगा, धीरे धीरे सारा जो गंदा पानी अपने आप बाहर निकल के स्पिल हो जाएगा और सिर्फ साफ पानी रह जाएगा। तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब, वो साफ पानी आपकी न्यू कंडीशनिंग है और जो गंदा पानी है वो आपकी ओल्ड कंडीशनिंग है। जैसे जैसे हम नई नई चीजों को ग्रहण करते हैं, हम ओपन हो जाते हैं लाइफ के लिए, हम एक्सेप्टिंग हो जाते हैं लाइफ के लिए, नई कंडीशनिंग आनी शुरू होती है। जैसे नई कंडीशनिंग आती है, पुरानी चीजें अपने आप ढह जाती है। मतलब जब नई तलवार आती है तो पुरानी तलवार ढह जाती है, जब नया इंसान आता है तो पुराने इंसान के रेजिड्यू खत्म हो जाते हैं। आप समझे? सो अपने आप को ओपन रखते हुए, एक्सेप्टिंग रखते हुए, नई नई चीजों को ग्रहण करते चले जाओ। जैसे नई नई चीजों को, नई नई बातों को ग्रहण करोगे, अपने आप दिमाग में ना पुरानी चीजें ढहनी शुरू हो जाती हैं। ये दिमाग एक टाइम पे एक चीज को पकड़ सकता है। दिमाग एक टाइम पे लाल किला और ताजमहल दोनों नहीं देख पाएगा, एक टाइम पे एक ही चीज देख पाएगा। आप समझे? जब मैं लाल किला बोलूंगा तो लाल किला देखेगा, जब मैं ताजमहल बोलूंगा तो ताजमहल का विजुअल आएगा। समझे मेरी बात? तो बहुत सिंपल है। सॉरी जी भैया, बहुत सिंपल है कि हमें नई नई चीजों को ग्रहण करने के लिए अपने आप को ओपन रखना है। नई बातों को ग्रहण करने के लिए, नए शब्दों को ग्रहण करने, नया कुछ सुनना है, नया कुछ देखना है, नया कुछ पढ़ना है। जो पहले नहीं किया वो अब करना है। अगर पहले भी वही किताब पढ़ी और आज भी वही किताब पढ़े तो ओल्ड रूटेड कंडीशनिंग। जो पहले किताब पढ़ी उसको छोड़ देते हैं, अब नई किताब मंगाते हैं। आप समझे? कैन यू हियर मी सलीम? तो ओल्ड पैटर्न को तोड़ने का तरीका है। और बताओ। I can hear you. ये बात समझ में आई आपको क्लियरली? For example, I want to transform. You want to transform yourself. I want to transform my health, wealth, relationship, and career. But the thing is, when I'm trying to gather the information from different sources, then the mind is only active, and the rest of the things is like imbalance. Mind is super hyperactive. So that is causing me sorry. anxiety. Last sentence dobara bolo. When the mind is? Because when I'm
I'm trying to gather information from different sources like books, YouTube videos. But the thing is, now mind is only active, and rest of the thing is like, okay, just they are leaving. So it's not like Zinda Dil Zindagi. It's like only mind life. बेसिकली क्या हो रहा है ना, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हो क्या था क्या है, हम ना पढ़ तो लेते हैं, सुन लेते हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते उस पर। इन द सेंस कि अगर सपोज आपने किसी वीडियो में सुन लिया, किसी ऑडियो में सुन लिया कि सुबह 5 बजे उठना अच्छा है, करेक्ट? अभी बात समझ में आ गई दिमाग को, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स समझ में आ गए, पॉजिटिव समझ में आ गए। लेकिन अगर हमने सुबह उठने की कोशिश नहीं की कल सुबह 5 बजे, तो सारी की सारी जितनी भी समझ है सब बेमायने हो जाती है। आप समझे कि अगर मैंने पढ़ लिया है, राइट, ग्रैटिट्यूड डायरी लिखना बेहतर है, राइट, और अगर मैंने ग्रैटिट्यूड को जीवन में इस्तेमाल ही नहीं किया और इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो सब बेमायने है। तो जो पढ़ो उसको एक्सपीरियंस जरूर करो, तो जीवन बदलता है। कि अगर जो मैं पढ़ लेता हूं, अगर मैंने पढ़ लिया कि सोशल मीडिया हैज इट्स इम्प्लीकेशन, तो उस दिन सोशल मीडिया आपने डिलीट कर दिया। आप समझे? यस एक्सपीरियंस करो, जो चीज एक्सपीरियंस करते चले जाओगे वो आत्मा में बैठ जाती है। जब आत्मा में बैठ जाएगी चीज, तो अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि अब नया कुछ आ गया। एक्सपीरियंस व्हाटएवर यू आर लर्निंग, इम्प्लीमेंट व्हाटएवर यू आर लर्निंग, तब लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। सिर्फ बैठ के वीडियोस, ऑडियो, मैसेजेस, बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ वहां से इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है, उस इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट करके एक्सपीरियंस करो, आत्मा में बसाओ, उसका तजुर्बा लो, तब जाके जीवन बदलेगा ना। जो लोग 5 AM के लिए हैं यहाँ पर, राइट, ये सुबह उठ रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस हो रहा है, तभी तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना। यस, तो बस ये जीवन का सिंपल सत्य यही है, एक्सपीरियंस, अनुभव लो, उसको आत्मा में उतारो, उसको इम्प्लीमेंट करो, और फिर वहां से आगे बढ़ेगा जीवन। ओके भैया, एक लास्ट मटेरियलिस्टिक क्वेश्चन है भैया। फॉर एग्जांपल, माय ड्रीम इज टू अर्न 10 lakh rupees per month after tax deduction, but I'm only aware of like software engineering. I'm a software engineer, but how do I give very good quality value to the public so that I can earn the at least 10 lakhs rupees per month? Because I'm not aware of that. Like for example, how richest people earn. So sorry, come again. How can you give qualitative value to the people? दोबारा बोलो. Yes, I want my target is to earn 10 lakh rupees per month, but I'm not sure what kind of value I will provide to the public. So because करते हैं. I have only few experience in IT. I get it. That's absolutely okay. तो जो लोग, देखो क्या होता है ना, चलो लिमिट तो नहीं कह सकते, हो सकता है 10 लाख, मतलब 10 लाख के लोग 20 लाख भी कमा सकते हैं, 50 लाख भी कमा सकते हैं। All I'm trying to say is, क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश की कि जो 10 लाख रुपए महीना कमाता है वो एक्चुअली ऐसा क्या कर रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं? In the sense, if somebody is earning 10 lakhs, so you can, I won't say, you can use him as a model for yourself to understand what is the thing that he's doing right and you're not doing right. Maybe आपका skill set कम है, maybe communication ठीक नहीं है, maybe आप जो बोल रहे हो वो बात वहां तक पहुंच नहीं रही है, maybe marketing ठीक नहीं है, maybe distribution सही नहीं है, maybe skill set के अंदर और ज्यादा बढ़ोतरी करने की जरूरत है. What is the thing? ये तो हमें देखना पड़ेगा ना. अगर हम एक particular goal को target करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है, जैसे hypothetically if I think that I want to earn or I want to become the next Shah Rukh Khan, hypothetically, correct? तो मुझे क्या करना है? I have to use him as a model. उन्होंने क्या क्या सही किया और क्या क्या गलत किया. जो सही किया, क्या मैं उस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकता हूँ? जो गलत किया, क्या मैं उन सब चीजों को और बेटर बना के उस गलत को भी सही कर सकता हूँ? क्योंकि वो गलतियां उनसे जाने अनजाने में हो गई, लेकिन हम तो सही कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने देख लिया वो गलतियां. Got it. समझ में आई बात? सिर्फ एक टारगेट रखने से कुछ नहीं, हमें 10 लाख कमाना है, बट लेट्स रेप्लिकेट दोस पीपल ना. उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में समझो, उनसे सुनो, उनके साथ अटैच हो कि व्हाट इज द थिंग दैट दे आर डूइंग राइट व्हिच यू आर नॉट एबल टू डू. द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट, यू फिल द गैप ऑफ बिटवीन द 1 लाख एंड द 10 लाख. क्योंकि अब मुझे गैप समझ में आ गया कि ये गैप हो रहा था, यहां मैं गड़बड़ कर रहा था, ये गलती हो रही थी. शायद मैं मार्केट सही नहीं कर पा रहा, शायद मैं डिस्ट्रीब्यूट सही नहीं कर पा रहा, शायद मेरा स्किल सेट कमजोर है, शायद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद मैं बात पहुंचा नहीं पा रहा.
कुछ भी हो सकता है। शायद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, शायद मैं कैमरे के पीछे ज्यादा अच्छा हूं तो शायद मुझे डायरेक्ट करना चाहिए, शायद मैं कैमरे के आगे अच्छा हूं तो मुझे एक्टर बनना चाहिए। आप समझिए, ये आप खुद ही जान पाते हो अपने बारे में। I'm just giving you all the possibilities. Got it? Got it, man. Got it. Thank you. All right, everyone. Thank you so much. Enjoy. I will see you back again on the next Sunday. The next batch starts for 5 a.m. from next Sunday, and I will see you back again. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Bye. 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 Bye, sir. Bye, everyone.